नमस्ते। केआर श्रीनारायणा कॉलेज वलांजेरी तथा KSHCC की ओर से आयोजित बहुविषयी वेबिनार परंपरा दीक्षांत 2021 के 8वें दिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज कॉलेज के हिंदी विभाग की ओर से टेक्निक्स एंड स्ट्रैटेजीज टू अवॉइड प्लेजरिज्म यानी साहित्यिक चोरी अथवा कृति चोरी से बचने की तकनीक एवं कार्यनीति पर वेबिनार संपन्न हो रही है। कॉलेज एवं मैनेजमेंट की ओर से आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। इस कार्यक्रम की शुभारंभ करते हैं प्रार्थना से। ദൈവമേ കാത്തുകൊള്ളുകങ്ങ് കൈവിടാതിങ്ങു ഞങ്ങളെ നാവികൻ നീ ഭവാദിക്ക് ഒരാവിവൻ തോണി നിൻ പദം ഒന്നൊന്നായി എണ്ണി എണ്ണി തൊട്ടെണ്ണും പൊരുളൊടുങ്ങിയാൽ നിന്നിടും ദൃക്ക് പോലുള്ളം നിന്നിളസ്പന്ദമാകണം അന്നവസ്ത്രാദി മുട്ടാതെ തന്നു രക്ഷിച്ചു ഞങ്ങളെ ധന്യരാക്കുന്ന നീയൊന്നു തന്നെ ഞങ്ങൾക്കു തമ്പുരാൻ ആഴിയും തിരയും കാറ്റും ആഴവും പോലെ ഞങ്ങളും മായയും നിൻമഹിമയും നീയുമെന്നുള്ളിലാകണം നീയല്ലോ സൃഷ്ടിയും സ്രഷ്ടാവായതും സൃഷ്ടിജാലവും നീയല്ലോ ദൈവമേ സൃഷ്ടിക്കുള്ള സാമഗ്രിയായതും നീയല്ലോ മായയും മായാവിയും മായാവിനോദനും നീയല്ലോ മായയെ നീക്കി സായുജ്യം നൽകുമാര്യനും നീ സത്യം ജ്ഞാനമാനന്ദം നീ തന്നെ വർത്തമാനവും ഭൂതവും ഭാവിയും പേരല്ലോതുമൊഴിയുമോർക്കിൽ നീ അകവും പുറവും തിങ്ങും മഹിമാവാർന്ന നിൻ പദം പുകഴ്ത്തുന്നു ഞങ്ങളങ്ങ് ഭഗവാനെ ജയിക്കുക ജയിക്കുക മഹാദേവ ദീനാവനപരായണ ജയിക്കുക ചിദാനന്ദ ദയാസിന്ധോ ജയിക്കുക ആഴമേറും നിൻ മഹസ്സാം ആഴിയിൽ ഞങ്ങളാകവേ ആഴണം വാഴണം നിത്യം വാഴണം വാഴണം സുഖം. स्वागत भाषण के लिए कॉलेज के पत्रकारिता विभाग के सहायक प्राध्यापक श्री जासिम अहमद को हम आमंत्रित करते हैं। താങ്ക് യു. നമസ്കാരം. കാരണം ഇത് രാഷ്ട്രഭാഷയും മാതൃഭാഷയും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് മാതൃഭാഷ തന്നെ നല്ലതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മാതൃഭാഷയിൽ തന്നെ തുടങ്ങുകയാണ്. രാഷ്ട്രഭാഷയും മാതൃഭാഷയുമാണ് ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. കാരണം രാഷ്ട്രഭാഷയിലാണ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഹിന്ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നടത്തുന്ന പ്രോഗ്രാമാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒന്ന രീതിയിൽ മാതൃഭാഷയിലാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കാരണം ഹിന്ദിയിൽ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ അത്ര വശമില്ലാത്തതുകൊണ്ടും ഇതാണ് കുറച്ചും കൂടി മാച്ചിങ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് എടുക്കുകയാണ്. ഏതായാലും ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഇന്ന് 8ാം ദിവസമാണ് നമ്മുടെ വെബിനാർ സീരീസിന്റെ ദിഷ്ണ 2021 വെബിനാർ സീരീസിന്റെ 8ാം ദിവസമാണ്. ഹിന്ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്നിക്സ് ആൻഡ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ടു അവോയ്ഡ് പ്ലാഗിയാരിസം എന്നുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. നല്ല റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും നല്ല റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു നമ്മളോട് ഇപ്പൊ ഒരു അസൈൻമെന്റോ സെമിനാറോ നിങ്ങളോട് കുട്ടികളോട് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ടീച്ചേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ സ്റ്റുഡൻസ് ആയിക്കോട്ടെ അവരാദ്യമേ തപ്പുന്നത് ഗൂഗിളിലായിരിക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഒരു കണ്ടന്റ് എടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരു കണ്ടന്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സെമിനാർ ഒരു സാധനം പ്രസന്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളതിനപ്പുറത്തേക്ക് ആ കണ്ടന്റ് എങ്ങനെ നമുക്ക് കോപ്പി കാറ്റിങ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാഗിയാരിസം എന്നുള്ളൊരു സംഭവത്തിനെ ഒഴിവാക്കാം എന്നുള്ള വളരെ പരമപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടന്റ് ആണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ I would like to welcome our beloved guest, Dr. Santosh C. sir, to
introduce the topic, and he will discuss all the things about the relevant topic. And I would like to invite Dr. Jitin P. George sir, not Dr. Anil sir, our beloved principal, and our IKC coordinator Dr. Fubida Ibrahim, program convener Dr. Jitin M, and this particular program is conducted by Mr. Jitin P. George sir, and vote of thanks by Gayshan sir. I would like to welcome all of you to the event, and I want to introduce about our chief guest, Dr. Santosh sir. He is a librarian at Central University of Haryana, and a gold medalist and rank holder in Master of Library Science, and he is also a PhD got from Mumbai University, and Masters in Mass Communication and Journalism, and same to my post graduation, and also a diploma in management. So I would like to welcome to the program, and it's my pleasure to invite this particular event. All of you, I would welcome all of you to this particular event. Thank you so much. धन्यवाद जतिन सर। केएस श्रीनारायण कॉलेज एवं केएसएचईसी के सहयोगिता में संपन्न होने वाली इस वेबिनार परंपरा में घोषणा 2021 में भाग लेने वाले सभी को मेरा नमस्कार। आज के संगोष्ठी में हम प्लेजरिज्म अर्थात साहित्यिक चोरी या कृति चोरी से बचने के विभिन्न योजनाओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो इससे पहले हमें प्लेजरिज्म क्या है इसके बारे में थोड़ा जानकारी हासिल करना होगा। क्या है प्लेजरिज्म? प्लेजरिज्म के बारे में कहा गया है the act of copying other person's ideas, words or work and pretending they are your own, something that has been copied in this way। अर्थात किसी के विचारों, शब्दों या कृति को अपना बताकर प्रयोग करने की क्रिया, इस प्रकार चोरी किए गए विचार आदि। यह मेरा अपना कथन नहीं है, ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से लिए गए हैं। तो अगर मैंने इसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को श्रेय देने के बिना अपना कहकर इस परिभाषा का प्रयोग करे तो वो भी प्लेजरिज्म ही कहा जाएगा। आसान भाषा में प्लेजरिज्म को समझाते समय मेरे मन में एक मलयालम फिल्म की याद आ रही है। 10-15 साल पहले एक मलयालम फिल्म आई थी उदयनानतार। उस फिल्म में क्या है कि उस फिल्म के एक पात्र है, उन्होंने क्या किया कि अपने दोस्त के द्वारा लिखे गए एक फिल्म की पटकथा जो है उसे चोरी करके अपना कहकर उस फिल्म में एक्टिंग करके बहुत बड़े एक्टर बन जाते हैं। तो यहाँ पर श्रीनिवासन द्वारा, हमारे मलयालम के एक्टर श्रीनिवासन द्वारा जिस उस पात्र का जो उसमें जो उस फिल्म में जो दिखा दिया है वही क्या है, वो प्लेजरिज्म के ही भूमिका में आते। तो मैं ज़्यादा समय अध्यक्ष भाषण में बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं श्री संतोष जी को थोड़ा उनके बारे में कहना चाहता हूँ। संतोष जी के बारे में कहे तो उनका जन्म कर्नाटका में हुआ है, जो हमारे आपसी राज्य हैं, और वहाँ के कर्नाटका विश्वविद्यालय से स्वर्ण पदक प्राप्त करके उन्होंने मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में साइंस को उत्तीर्ण किया। 2017 में आपने मुंबई विश्वविद्यालय से PhD हासिल की। आपने 2 दर्जन से अधिक पत्र को अपने नाम से पब्लिश किया है और अनेक की रचना में सहयोगिता दी है। और आजकल वे
उन्होंने हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के पुस्तकालय के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। उससे पहले उन्होंने कई महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में काम किया है। तो मैं ज़्यादा समय लेने के बजाय संतोष जी को इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ इस सेशन से आप सब लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब समय है इस कार्यक्रम की मुख्य भाग की ओर चलने की। साहित्यिक चोरी या कृति चोरी से बचने के तकनीक तथा कार्यनीति पर अपने वक्तव्य प्रस्तुत करने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के पुस्तकालय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष CH। उक्त विषय पर वक्तव्य देने के लिए सर को सादर आमंत्रित करती हैं। Thank you, Anushree. Thank you very much. So, सभी को मेरा प्रणाम और नमस्कार। आज इस व्याख्यान में जो भी उपस्थित है दीक्षाना 2021 मल्टीडिसिप्लिनरी इंटरनेशनल वेबिनार सीरीज में, सभी को मेरा नमस्कार। मैं मेरा वक्तव्य शुरू करने के पहले KR श्री नारायण कॉलेज और केरला स्टेट एजुकेशन काउंसिल के सभी पदाधिकारी, प्रमुख में जो प्राचार्य है, जो प्रिंसिपल ऑफ श्री नारायण कॉलेज है, उनको मेरा बहुत ही धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने मुझे एक अवसर दिया है आप सभी को संबोधन करने का। और स्पेशली जितिन जी जो मेरे से जुड़े थे, मुंबई में मैं एक लेक्चर दे रहा था तो उन्होंने अटेंड किया था, तो उस हिसाब से उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और मुझे उन्होंने ये एक अवसर मुझे दिया है। उनको भी मेरा नमस्कार। और इसमें काफ़ी सारे लोग जुड़े हैं जो IQAC से जुड़े हैं, जासिम अहमद जी है, अनुश्री है, बाकी सभी जो भी पदाधिकारी है और कॉलेज के स्टाफ है जो इस प्रोग्राम कर रहे हैं। बहुत बड़ा मेगा प्रोग्राम है। मैं प्रिंसिपल को बधाई देना चाहता हूँ कि और ये बहुत ही काबिल तारीफ है, एंड आई शुड अप्रिशिएट दैट they have planned this very mega event. I have not seen this kind of a mega event wherein you are calling series of conducting series of lectures and calling different experts from different parts of the country. So thank you so much. So आपका समय मैं बचाने के लिए मैं डायरेक्ट अपना प्रेजेंटेशन शुरू करना चाहता हूं। और जितिन जी ने मुझे आग्रह किया कि इस प्रेजेंटेशन मुझे हिंदी में करना है, क्योंकि ये हिंदी विभाग से किया हुआ एक कार्यक्रम है। तो मैं पूरा कोशिश करूंगा कि मैं हिंदी में ज़्यादा बात करूं, और कहीं कहीं मैं हिंदी में बात नहीं कर सका तो फिर मैं कन्नड़ में नहीं बात करूंगा, इंग्लिश में बात करूंगा। थैंक यू सो मच। सो मैं मेरा प्रेजेंटेशन अभी शेयर करूंगा। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कृति चौर्य के बारे में, साहित्यिक चोरी के बारे में बात कर रहे हैं। उसको हम इंग्लिश में प्लेजरिज्म बोलते हैं। ये बहुत ही अहम मुद्दा है जो हम आज इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसमें मैंने दो शब्दों का प्रयोग किया है, जो है टेक्निक्स एंड स्ट्रैटेजी टू अवॉइड प्लेजरिज्म। सो ये कौन सी टेक्निक्स है जो जिस टेक्निक से हम प्लेजरिज्म से बच सकते हैं, प्लेजरिज्म का गलती ना कर सकते हैं, तो उसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। और ये स्ट्रैटेजी क्या होता है, स्ट्रैटेजी में क्या स्किल की हमको सीखने की जरूरत है, और जिस का उपयोग से, टेक्निक और स्ट्रैटेजी के उपयोग से हम कैसे प्लेजरिज्म को अवॉइड कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। मैं शुरुआत में मैं ये आपको बैकग्राउंड एक देना चाहता हूं कि मैं दूसरे सेकंड स्लाइड में जाने से पहले मैं कुछ चीज़ों को आपके नज़र में लाना चाहता हूं। पहली बात क्या है कि हम आजकल बहुत सारे पेपर्स और रिसर्च पेपर्स, आर्टिकल्स लिख रहे हैं। वी आर राइटिंग लॉट ऑफ आर्टिकल्स, एंड इवन इफ यू टेक एन एग्जांपल ऑफ थीसिस, डिसर्टेशंस, मोनोग्राफ्स, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ है, 845 के ऊपर हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ है इंडिया में। अलग अलग कंट्रीज में बहुत सारे, चाइना आप देखेंगे तो फिर उनके चाइना में भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है। चाइना में मोर देन 3,10,000 PhD स्टूडेंट्स अभी पढ़ाई कर रहे हैं। हमारे इंडिया में भले ही PhD में जो रेशो है, जो पार्टिसिपेट करते हैं PhD जो करने के लिए, उसमें 0.53 एनरोलमेंट रेशियो है, बट आप PhD के नंबर देखेंगे तो फिर इंडिया में
2018-19 में 40,800 PhD अवार्ड हो गए, और उसमें एमपिल अलग है, एमपिल का 25,000 एमपिल अवार्ड हुए हैं। तो आप चाइना का बात लेते हैं तो चाइना में मोर देन 1,10,000 PhD अवार्ड होते हैं, अमेरिका में 70,000 होते हैं। इस बात मैं क्यों आपके सामने रख रहा हूँ कि आजकल हम ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस कर रहे हैं। वो रिसर्च इंफॉर्मेशन हो सकता है, या आपका जो भी नॉर्मल जो रूटीन आप एक डेटा शेयर करते हैं, आपके व्हाट्सएप ग्रुप हो सकता है, आपके फेसबुक हो सकता है, हम बहुत सारे डेटा अपलोड करते हैं, शेयर करते हैं, पब्लिश करते हैं। यहाँ एक सवाल उठता है कि ये जो डेटा कैसे होता है, कैसा डेवलप होता है, ये डेटा कहाँ से आता है? क्या हमने किसी एक कृति से या एक बुक से, एक ऑनलाइन सोर्स से हमने लेके कर रहे हैं, या उसको रेफर प्रॉपरली हम साइटेशन स्टैंडर्ड यूज करके कर रहे हैं? ये सभी सवाल है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी आजकल प्रोड्यूस हो रहा है, जो भी हम लिखते हैं, जो भी हम रिसर्च करते हैं, ये सारे रिसर्च ओरिजिनल है क्या? ये सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, ताकि हम इस विषय को हम कनेक्ट करें, संपर्क करें कि सभी जो प्रकार के जो रिसर्च होते हैं, संशोधन होते हैं, इसमें हमको काफ़ी सारे लिटरेचर रिव्यू करना पड़ता है, बहुत ही साहित्य को पढ़ना पड़ता है। आप हिंदी के अभ्यासी हो या अलग विभाग के विद्यार्थी हो या संशोधनार्थी हो, तो आपको बहुत सारे रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, रिसर्च पेपर्स को रेफर करके करना पड़ता है। इसका मतलब तो ये नहीं कि हमको जस्ट रेफर करना है करके हम कोई भी चीज़ों को लेके प्रेजेंट करें। उसमें एक साइंटिफिक अप्रोच है, लिखने का एक तरीका है, स्टैंडर्ड्स है, उसके इंटरनेशनल कन्वेंशंस है, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है। ये सारी चीज़ों को हमको फॉलो करके लिखना है। तो इसी बेस पर हम आज के प्रेजेंटेशन को प्रेजेंटेशन में ये सारे चीज़ों को चर्चा करेंगे। मैं बीच बीच में जो हमारे शैक्षणिक और संशोधन क्षेत्र में क्या हो रहा है उसके बारे में भी मैं थोड़ा आपको बीच बीच में मैं बताता रहूँगा। जो डेवलपमेंट्स हो रहा है, जो ट्रेंड्स चल रहे हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। क्यों ये प्लेजरिज्म क्यों ज़्यादा चल रहा है, ज़्यादा आज हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, पहले क्यों नहीं था, अभी क्यों कर रहे हैं? तो इसमें बहुत सारे कई कारण हैं, क्योंकि क्या है ना, आजकल जो इंटरनेट का ज़माना है, जो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, यहाँ क्या हुआ है कि सभी लोगों को अवसर है, सभी लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिला है कि हम कुछ ना कुछ करके दिखाए, कुछ ना कुछ लिख के दिखाए। क्योंकि आजकल इंफॉर्मेशन बहुत सारे तादाद में अवेलेबल है। 19वीं शताब्दी में, मीन्स 19th सेंचुरी में, इंफॉर्मेशन या डेटा को डबल करने के लिए 100 ईयर्स की रिक्वायरमेंट थी। 100 साल के बाद इंफॉर्मेशन पूरा, अभी तक जो मानव संकुल ने जो पैदा किया है इंफॉर्मेशन को, उसके लिए 100 ईयर्स लगते थे। आजकल क्या हो रहा है मालूम है? आजकल एक थियरी है नॉलेज डबलिंग कर्व करके, नॉलेज डबलिंग कर्व। इनके थियरी के हिसाब से क्या है कि अभी तक जो भी मानव संकुल ने जो इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस किया है वो 13 महीने में डबल हो रहा है। क्योंकि आजकल हमको इंफॉर्मेशन कहीं से भी मिल रहा है, लाइब्रेरी से मिलता है, ऑनलाइन रिसोर्सेज से मिलता है। तो यहाँ कमी नहीं है, इंफॉर्मेशन और डेटा की कमी नहीं है। जस्ट हमको सही क्या है, गलत क्या है, वो देख के लिखना बहुत ही जरूरी है। और ये प्रेजेंटेशन उन लोगों के लिए बहुत ही जरूरत है कि जो लोग सीखना चाहते हैं कि कैसे हम अच्छी तरह से लिखे, ताकि क्या है ना, हम ये प्लेजरिज्म के चक्कर में ना पड़े, है ना। हम प्लेजरिज्म के कोई भी हमको इश्यूज हमारे करियर को खराब नहीं करना चाहिए, है ना। तो आजकल क्यों ये प्लेजरिज्म ज्यादा हो रहा है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये मैं आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ, मैं आज का लेक्चर में क्या क्या चीज मैं बात करने वाला हूँ। ये प्लेजरिज्म क्यों हमारे संबंध में बहुत ही मीन्स अहम है, मीन्स हमारे एक शैक्षणिक क्षेत्र में या संशोधन करते वक्त हमको क्यों ये बहुत मैटर करता है, क्यों हमको इसके बारे में ध्यान देना जरूरी है, इसके बारे में भी हम आज चर्चा करेंगे। क्या क्या रिसर्च में प्रेसिंग इश्यूज है, प्रेसिंग इश्यूज बोले तो कुछ प्रॉब्लम्स है, वो क्या प्रॉब्लम्स है, उसकी वजह से प्लेजरिज्म का डायरेक्ट इम्पैक्ट या डायरेक्ट रिलेशन होता है, उसके बारे में बात करेंगे। और ये हमारा अवॉइडिंग प्लेजरिज्म हमारा हार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन है। इस लेक्चर का, इस व्याख्यान का ये हार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन है, जो अवॉइड कैसे करें, प्लेजरिज्म को अवॉइड कैसे करें। देखिए, दो प्रकार के लोग होते हैं, जो लोग लिखते हैं या लेक्चर देते हैं या कोई भी चीज को व्यक्त करते हैं। दो प्रकार के लोग ऐसे होते हैं कि जो लोग सिंसियरली काम करते हैं, जो बहुत ही ऑनेस्टली काम करते हैं,
जो भी रूल्स रेगुलेशन है स्टैंडर्ड को फॉलो करके करते हैं, बट कभी ना कभी वो लोग भी गलती कर देते हैं कि कुछ अनजाने में वो लोग गलती करते हैं, उसको हम अनइंटेंशनल बोलते हैं, अनइंटेंशनल प्लेजरिज्म बोलते हैं। दूसरे ऐसे व्यक्ति रहते हैं कि जो उनको मालूम है कि ऐसे लिखना गलत है, स्टैंडर्ड को फॉलो करना जरूरी है, बट वो फिर भी करते नहीं है, फिर भी लिखते हैं और छपते हैं, पब्लिश करते हैं और इसका क्रेडिट लेते हैं और प्रमोशन लेते हैं। इस कैटेगरी के लोग भी रहते हैं। तो मैं पहले वाले कैटेगरी के लोगों के बारे में ही मैं बात करना चाहता हूँ इस व्याख्यान में, कि कैसे हम एक सिंसियर हमको प्रोफेशनल बनना है, एक उपन्यासक बनना है, एक लेक्चरर बनना है, एक शोधार्थी बनना है, एक विद्यार्थी बनना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। आजकल आप काफी सुनते हैं कि प्लेजरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर के बारे में, टर्निटिन हो, उर्कुंद हो, आपने सुना होगा। ये प्लेजरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर क्या होती है और इसका नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, उसके बारे में भी हम आज देखेंगे। पीयर रिव्यू ट्रेंड क्या है आजकल, ये भी हम वर्ड बहुत यूज करते हैं कि मेरा आर्टिकल पीयर रिव्यू जर्नल में पब्लिश हुआ है। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा मैगजीन में पब्लिश हुआ इसलिए मुझे स्कोर नहीं मिलेगा, इसके बारे में भी हम देखेंगे। अनएक्सेप्टेबल ऑथर्स कौन होते हैं? बहुत सारे ऑथर्स में प्रकार है, आप तो जानते हैं कि जो लिखता है वही ऑथर है, वो तो एक प्रकार है, उसमें हम प्रिंसिपल ऑथर बोलते हैं, को ऑथर बोलते हैं, ये सारे है। बट इसके अलावा भी 3 तरह के एक अलग किस्म के ऑथर्स है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। उस ऑथर का क्या लक्षण है और उस ऑथर हमको बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, इसके बारे में देखेंगे। एज अ रिसर्चर, एक प्राध्यापक होके, एक अध्यापक होके, एक उपन्यासक होके या एक संशोधनार्थी होके, एक रिसर्च स्टूडेंट होके हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा क्या दायित्व है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अंत में मैं एक चीज यहाँ ऐड किया है जो साइटेशंस के बारे में। जो साइटेशंस होते हैं, जो आप रेफरेंस देते हैं एट द एंड ऑफ द पेपर और चैप्टर में, इसका बहुत ही इम्पोर्टेंस है ये प्लेजरिज्म के टॉपिक में, प्लेजरिज्म के लेक्चर में। बिना साइटेशंस हो, साइटेशन के छोड़ के हम प्लेजरिज्म के बारे में बात नहीं कर सकते। तो इस व्याख्यान में मेरा मूल उद्देश्य क्या है कि मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, शब्दों के बारे में आपको सही जानकारी होना जरूरी है। और दूसरी बात क्या है कि एक ऑब्जेक्टिव उद्देश्य एक प्रेजेंटेशन का है कि आप कभी भी एथिकली करेक्ट होना है। आपको जो नैतिकता है, जो शैक्षणिक नैतिकता है, जो संशोधन नैतिकता है, उसमें आपको सही रहना है। ये 2 उद्देश्य के साथ मैं आज का प्रेजेंटेशन शुरू करने वाला हूँ। दोस्तों, आपको ये सब मालूम है, ये महामहिम है ओबामा जी, आपको मालूम है ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तो अमेरिका में प्लेजरिज्म का या कॉपीराइट के बारे में काफी सीरियस हैं लोग। इस पूरा पैरा को आप पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ओबामा क्या है कि जब उनका प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो प्रेसिडेंट पोस्ट के जो चुनाव हुए अमेरिका में, जब वो चुनाव लड़े थे, उस टाइम में उन्होंने हिलरी क्लिंटन के जो स्टेटमेंट थे उन्होंने अपने भाषण में यूज किया था, बट उन्होंने एक्नॉलेज नहीं किया। उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं हिलरी क्लिंटन का शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, शब्दों का यूज कर रहा हूँ, उनके स्टेटमेंट को मैं यहाँ व्यक्त कर रहा हूँ, इसके बारे में उन्होंने जिक्र नहीं किया। बट बाद में क्या हुआ कि हिलरी क्लिंटन ने इनके ऊपर, ओबामा के ऊपर एलिगेशन डाला, कंप्लेंट डाला और उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि ओबामा अपने इलेक्शन कैंपेन में मेरा ही शब्द यूज किए, बट मुझे एक्नॉलेज नहीं किए, मुझे थैंक्स नहीं बोले कि ये वर्ड्स हिलरी क्लिंटन से बिलोंग करती है। तो बाद में ओबामा बोलते हैं कि काफी सारे ऐसे व्याख्या है, ऐसे सेंटेंसेस है, ऐसे स्टेटमेंट्स है जो मेरा हिलरी क्लिंटन खुद लेके बहुत सारे भाषण किए हैं, बट मैंने कुछ भी नहीं बोला, बट जहां मैं उनका वर्ड्स यूज किया तो फिर वो मुझे बोलने लगे। तो इसका ये एग्जाम्पल मैं क्यों ले रहा हूं कि आपको समझना चाहिए कि इवन हम स्पीच में भी, अगर हमने एक हमारे लेक्चर में, हमारे स्पीच में, पब्लिक स्पीच में भी हम कभी किसी का स्टेटमेंट या कभी किसी का आइडिया हम यूज करते हैं तो फिर उनको उसी समय उनका नाम लेना बहुत ही जरूरी है। ये अमेरिका में इस चीजों का बहुत ही ध्यान दिया जाता है। इंडिया में ये उतना सीरियसनेस नहीं है जहाँ लेक्चर की बात आती है, जहाँ व्याख्यान की बात आती है।
हम ये समझे हैं कि हमारे भारत के जो अध्यापक है, बहुत सारे भारत के अध्यापक के जो संशोधनार्थी है, हमारे में एक वहम है कि जो प्लेजारिज्म है वो लिखित रूप में जो भी हम लिखते हैं, जो रिसर्च पेपर लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, उसी में गिना जाता है, बल्कि व्याख्यान या लेक्चर या कभी पब्लिक लेक्चर देते हैं उसमें गिना नहीं जाता। ऐसे कुछ नहीं है। तो इसीलिए इस एग्जाम्पल से हम ये सीखते हैं कि कोई भी चीज हम करें, कहीं भी हम किसी का आइडिया लिया है या उनके विचारों को हमने पढ़ लिया है, उस विचारों को हमको एक्नॉलेज करना है, तुरंत हमको थैंक्स बोलना है। देखिए, ये व्याख्यान के बाद आप वोट ऑफ थैंक्स करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आने वाले अतिथि जिन्होंने उन्होंने श्रम किया है, इस व्याख्यान को दिया है, उनको हमको आभारी या हमको धन्यवाद अर्पण करना या एक्सप्रेस करना, ये हमारा दायित्व बनता है। ये एक ह्यूमन नेचर है, एक ह्यूमन रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये एथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी प्रकार से कभी भी आप कोई भी एक विचार को अपने भाषण में या अपने आर्टिकल और पेपर में यूज करते हैं तो फिर तुरंत किसी को थैंक्स बोलना, एक्नॉलेज करना का इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पूरा उसका साइटेशन स्पीच में बोलना है। जैसे हम पेपर में लिखते हैं, आपको उनका नाम लिया तो भी बहुत है। देखिए फ्रेंड्स, मैं एक स्लाइड, ऐसी चीज स्लाइड दिखा रहा हूँ कि जहां मैंने गूगल में सर्च किया था प्लेजारिज्म वर्ड के बारे में, जो भी न्यूज आए हैं टाइम्स ऑफ इंडिया में, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा चर्चा करना चाहता हूँ। आप गूगल में प्लेजारिज्म इश्यूज या प्लेजारिज्म न्यूज करके आपने टाइप किया तो पर आपको बहुत सारे प्लेजारिज्म के कंप्लेंट्स या केसेस आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। मैंने भी ऐसे किया और बहुत सारे मुझे न्यूज क्लिपिंग्स मुझे मिले। मैं एक विषय इसमें मूल रूप से या स्पेसिफिकली मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ। ये है तुलसीदास अक्यूज्ड ऑफ प्लेजारिज्म। आप सभी जानते हैं कि तुलसीदास रामचरितमानस लिखे और वाल्मीकि ने रामायण लिखा। तो लोगों का कहना यह है कि जो वाल्मीकि ने रामायण लिखा था उसको कॉपी करके तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा। तो ये आप समझ सकते हैं कि तुलसीदास बहुत सालों, सैकड़ों सालों के एक बहुत बड़ा वाग्मी थे, बहुत बड़ा लेखक थे, बहुत बड़ा विचारवादी थे, है ना, एक आध्यात्म जीवी थे, है ना। उनका अभी हम प्लेजारिज्म किया करके कंप्लेंट कर रहे हैं। तो इसमें से हम ये सीखते हैं कि प्लेजारिज्म का इश्यू कभी भी आ सकता है। आज आपने एक पेपर लिखा है, 10 साल के बाद भी आपको कोई भी कंप्लेंट कर सकता है। इस उदाहरण से हम ये समझ सकते हैं कि कृति चौर्य का जो कंप्लेंट है कभी भी आ सकता है, इसलिए हमको ध्यान से अपना काम करना है ना जी। तो ये तुलसीदास ने उस टाइम का जो विचार है, हमारे एक भारतीय संस्कृति में एक ऐसा विचार है कि जो ज्ञान है, ज्ञान को कभी भी आपको छुपा नहीं रखना है। और ऐसा भी नहीं कि ज्ञान कहाँ से लिया, आपने किससे लिया, इनको थैंक्स बोलने की भी जरूरत नहीं। क्योंकि भारत में एक ऐसी संस्कृति है कि जो ज्ञान है वो अपने खुद की नहीं है, वो ज्ञान सबके लिए, सबका डेवलपमेंट, सबके विकास के लिए वो ज्ञान की जरूरत है। तो हमारे संस्कृति ऐसा है। जब जैसे जैसे जो विश्वविद्यालय बढ़ते गए, कॉलेजेस बढ़ते गए, रिसर्च बढ़ते गया, तो यहाँ कुछ लोग क्या करने लगे कि इसका गलत इस्तेमाल करने लगे। किसी का लेखन यूज करके अपने नाम डाल के फिर क्रेडिट लेना, प्रमोशन करवाना। इस चक्कर में पढ़ने के बाद क्या है कि जो शैक्षणिक जगत है वो अवेयर हो गया, जो स्टैट्यूटरी बॉडीज है यूजीसी, एआईसीटी, जो बहुत ही अवेयर हो गए, इसलिए थोड़ा स्ट्रिंजेंट या कठिन एक नियमों का एक इंट्रोड्यूस किया। ओके, तो इस वजह से क्या हो गया कि प्लेजारिज्म के बारे में काफी आजकल अवेयरनेस है। तो दोस्तों, मैं प्लेजारिज्म का विषय के ऊपर डायरेक्ट बात करने के पहले मैं आपको बैकग्राउंड देना चाहता हूं ताकि आप समझ सके कि प्लेजारिज्म एक मुद्दा है जो इसके बारे में हमको इग्नोर नहीं करना है, इसके बारे में हमको काफी ध्यान देना है, इसको नजरअंदाज नहीं करना है। आप कितने भी सिंसियर हो सकते हो, कितने भी इनसिंसियर हो सकते हो, बट दोनों के लिए, जो सिंसियर है उनके लिए भी प्लेजारिज्म के बारे में जानना जरूरी है। जो सिंसियर नहीं है, जस्ट नाम कमाना चाहता है, पेपर पब्लिश करना चाहता है, उनके लिए भी इतना ही व्याख्यान जरूरत है, प्लेजारिज्म के बारे में जानना जरूरत है। दोस्तों, मैं आपसे एक अनुरोध करता हूं कि आप कभी भी
इस वेबसाइट को कभी भी देखिए, आप कभी भी फुर्सत में याद से इस वेबसाइट को आप देखिए। मैं ये प्रेजेंटेशन भी आपके साथ शेयर करूंगा, जितिन जी के साथ मैं शेयर करूंगा ये प्रेजेंटेशन मेरा लेक्चर खत्म होने के बाद। आप कभी भी इस प्रेजेंटेशन को आप देख सकते हैं। इसमें मैं मूल रूप से क्या बोलना चाहता हूं कि यहाँ बहुत सारे प्लेजारिज्म के कंप्लेंट्स के केसेस है। यहाँ जो कंप्लेंट्स कैसे है प्लेजारिज्म के बारे में, उसको कैसे एक सॉल्यूशन दिया गया है। आप अपने पेपर लिखते वक्त बहुत सारे आपके मन में सवाल उठते हैं कि इस व्याख्या को मैं कैसे साइट करूं, इसको मैं कैसे एक्नॉलेज करूं, इसको मैं कैसे थैंक्स बोलूं, इस वाक्य में मैं ज़्यादा कोटेशंस यूज़ करना है क्या मेरे पेपर में, मैं पूरा आप हिंदी डिपार्टमेंट के हैं, मैं पूरा कविता को मैं पेस्ट कर रहा हूं मेरे पेपर में, तो ये प्लेजारिज्म में आएगा तो नहीं। तो ऐसे कई सवाल है जो आपके मन में उठते हैं। आप रिसर्च किए होंगे, आप रिसर्च करते होंगे, जो विद्यार्थी है अभी करते होंगे, तो आप सभी लोगों को ये प्रश्न कभी ना कभी आएगा ही। इसीलिए आपको करना क्या है कि इस publicationethics.org के वेबसाइट में जाके आप बहुत सारे केसेस पढ़ सकते हैं कि लोग कैसे कैसे समस्याओं को फेस किया है, उसका सॉल्यूशन या समाधान क्या है। तो ये आप देख सकते हैं। ये कोप क्या है कि कमिटी ऑन पब्लिकेशन एथिक्स, इसका लॉन्ग फॉर्म है कमिटी ऑन पब्लिकेशन एथिक्स। यहाँ आप 660 केसेस ऐसे पढ़ सकते हैं। दोस्तों एक बात आपको बहुत ही ध्यान में रखना है कि प्लेजारिज्म एकेडमिक सेक्टर में, जो शैक्षणिक जगत में, प्लेजारिज्म एक ऐसे मुद्दा नहीं है कि जो बहुत ही सीरियस है, बहुत ही क्या बोलते हैं कि सिस्टम को खराब करने वाली एक विषय है, ऐसा नहीं है। प्लेजारिज्म के अलावा भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज है कि जो हमारे शैक्षणिक जगत को एक चिंता बनी है, एक शैक्षणिक जगत को एक प्रश्नार्ह एक मुद्दा बन गया है। फॉर एग्जाम्पल ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक केमिस्ट्री वर्ल्ड करके एक मैगजीन से मैंने लिया है। इसमें क्या है कि ये जो जर्नल है, ये मैगजीन है, एक क्या क्या चीज़ों को देखता है, मीन्स क्या क्या मुद्दे या इश्यूज या प्रॉब्लम्स को देखता है। फॉर एग्जाम्पल इस जर्नल को या मैगजीन को कोई भी आर्टिकल आता है किसी ऑथर से, आप देख सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल एरर रहता है। कभी कभी आपने जो टेबल बनाए, आपने एक्सपेरिमेंट किया, आप हिंदी के हैं, आप तो टेबल्स डालेंगे नहीं आपके पेपर में, बट मैं जनरली बता रहा हूँ। थ्योरेटिकल एरर रहता है, अनक्लियर ऑथरशिप रहता है। कभी कभी ऐसे होता है कि ऑथर, सेकेंड ऑथर का नाम आपने जानबूझ के डाला है, वो बहुत फेमस है करके उनको आपने इन्फॉर्म भी नहीं किया, कंप्लेंट हो सकते हैं इसके बारे में। अफिलिएशन एरर, जानबूझ के लोग अपने इंस्टीट्यूट का नाम सही डालने से दूसरे का इंस्टीट्यूट डालते हैं, ये सारे सच है। ये ऐसे इश्यूज काफी सारे पब्लिशर को दिखाई देती है। मिसिंग ऑथर, आर्टिकल आपने लिख दिया और भेज दिया बट आपके नाम नहीं लिखा है। तो ये सारे प्लेजारिज्म का इश्यू जो है, सेल्फ प्लेजारिज्म बहुत होता है। आपने 2 साल पहले एक आर्टिकल लिखा है, उसी आर्टिकल को आपने थोड़ा बहुत चेंज करके आपने फिर से भेजा है, तो ऐसे इश्यूज को भी देखा जाता है, जो पब्लिशर देखा जाता है। डुप्लीकेट पब्लिकेशन, आपने 2 साल पहले एक आर्टिकल लिखा है, उसको डिट्टो एज इट इज आपने फिर से भेज दिया पब्लिश करने के लिए। आपके पेपर में डेटा बहुत गलत है, प्रॉब्लमेटिक डेटा है। तो ये सारे मुद्दे जो हम जब पेपर लिखते हैं, पब्लिश करते हैं, ये सारे मुद्दे बहुत ही मायने रखते हैं। तो मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ कि शैक्षणिक जगत को या संशोधन क्षेत्र को प्लेजारिज्म से ही दिक्कत नहीं है। प्लेजारिज्म के अलावा ये बहुत सारे दिक्कत या मुसीबत या इश्यूज है। आप ये भी देख सकते हैं कि मैं एल्सवेयर एक पब्लिशर है, बहुत नामचिन्ह, ये बहुत जाने माने पब्लिशर है। ये लोग रिपोर्ट करते हैं कि उनके पब्लिकेशंस में क्या क्या इश्यूज को वो लोग देखते हैं और क्या क्या इश्यूज नजर में आते हैं। जब पेपर्स ऑथर्स बेचते हैं तो उनको लगता है कि ऑथरशिप में गड़बड़ है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बोले तो क्या है कि जब पेपर बेचते हैं तो फिर बहुत सारे टाइम में पब्लिशर रिव्यू करके भेजने के लिए बोलते हैं। पेपर के साथ आप किसी से रिव्यू करवा के भेज सकते हैं, तो वो जानना चाहते हैं कि आपका पेपर किसी ने कैसे रिव्यू किया है। पब्लिशर तो रिव्यू अपने हिसाब से वो कर लेगा, वो बात की बात है, बट जब कभी भी पेपर आप लिखते हो तो उसके साथ आपको किसी से रिव्यू करवा के उनका कमेंट्स भी भेजना जरूरी होता है। तो इस टाइम में रिव्यू कभी भी आप ऐसे लोगों का ले लेते हैं कि जो आपको पढ़ा है, जो आपके बहुत करीबी हैं,
और वो तो आपको नेगेटिव रिव्यू कभी भी नहीं करेगा, पॉजिटिव रिव्यू करेगा। ऐसे भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं। आपने फंड लिया है किसी से, बट वो फंड देने वाला आपके कोई पहचान वाला है। तो ये डुप्लीकेट सबमिशन, इसके बारे में मैंने बात किया। प्लेजारिज्म एक इश्यू है, इसके प्लेजारिज्म के अलावा बहुत सारे इश्यूज है। रिसर्च फ्रॉड हो सकता है। फ्रॉड बोले तो जो भी आपने फाइंडिंग्स लिखा है, जो भी आपने आपके जो निष्कर्ष लिखा है, जो आपने संशोधन किया है, वो सारा झूठ है। आपने क्रिएट करके लिखा है। रिजल्ट मिस अप्रोप्रिएशन, ये बहुत साइंस में होता है, टेक्नोलॉजी और मेडिकल साइंस में बहुत सारे पेपर्स में ऐसे भी होते हैं कि जो रिजल्ट को अलग वे में लिखा जाता है, कि कोई भी एक पेपर में पढ़ लिया, उसी का स्टैटिस्टिक्स या फिगर या डेटा को मैं चेंज करके मैं अपने पेपर में लिखता हूँ एज इफ मैंने उस रिसर्च किया है करके। तो ये सारे इश्यूज है। मैं क्यों आपके नज़र में लाना चाहता हूँ कि आपको लगना चाहिए कि प्लेजारिज्म जस्ट एक साहित्यिक चोरी इतना ही नहीं है। प्लेजारिज्म जस्ट चेकिंग करने का ही मीन्स जुरिस्डिक्शन में नहीं है, उसके अलावा उसके साथ में बहुत सारे इश्यूज कनेक्टेड हैं। मैं जैसे बोला कि आपको प्लेजारिज्म क्यों हो रहा है, ज़्यादा आजकल हम क्यों देखने के लिए मिलता है कि प्लेजारिज्म के बारे में बहुत चर्चा होती है, डिस्कशन होती है। अथॉरिटीज बोलते हैं कि प्लेजारिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर होना चाहिए, लोग प्लेजारिज्म नहीं करना चाहिए। इसके बारे में बहुत सारे रीजंस है, जो कारण है। क्योंकि क्या ना, हमारे प्रमोशन क्या हुआ है कि पब्लिकेशन के साथ लिंक किया गया है। तो इसके लिए क्या होता है कि आपको प्रमोशन लेने के लिए आपको क्या करना है, आपको लिखना ही है। आप विद्यार्थी हैं तो फिर आपको मार्क्स मिलने के लिए, आपको डिग्री मिलने के लिए आपको डिसर्टेशन करना ही है, प्रोजेक्ट करना ही है। इसीलिए क्या करते हैं हम, समय की अभाव होने के कारण या कोई अलग कारण से क्या करते हैं, हम साहित्य का चोरी करना शुरू करते हैं। चोरी इन द सेंस क्या है कि कॉपी पेस्ट करते हैं, उसका हम थैंक्स नहीं बोलते, एक्नॉलेज नहीं करते। कभी ऐसे भी होता है कि हम एक्नॉलेज करते हैं, थैंक्स बोलते हैं, साइटेशन डालते हैं, बट आपका खुद का कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं रहता है। आपने 10 पेज का एक आर्टिकल लिख दिया, तो फिर उसमें आपके खुद के सेंटेंस नहीं है, आपने इधर उधर से निकाल के डेटा बना के, पेपर बना के आपने लिखा है। आपने 20 पेज का एक पीएचडी का चैप्टर लिखा है, उसमें आपके खुद के वर्ड्स बहुत ही रेयर है, कम है। आपने अलग अलग सोर्स को लेके फिर उसको कॉपी पेस्ट करके आपने 20 पेज का एक चैप्टर बनाया। तो ये ऐसे नहीं होता, इसको हम एथिकल प्रैक्टिस नहीं बोलते, एथिकल राइटिंग नहीं बोलते। सच में रिसर्च ऐसे होता है कि जो काफी पढ़ने के बाद आपके खुद के वर्ड्स में उसको लिखना है, खुद के शब्दों को यूज करके, प्रयोग करके आपको लिखना है। दूसरी एक रीजन ऐसा है कि हमको क्विक रिजल्ट चाहिए और डिग्री चाहिए। आजकल बहुत कंपटीशन है। हम ये देखते हैं कि मेरा जो कलीग मेरे साथ स्टाफ रूम में बैठता है, मेरे कलीग काफी सारे पेपर लिख रहा है, तो फिर मुझे भी लिखना है। तो इस लिखने के चक्कर में, इस कंपटीशन के चक्कर में हम क्या करते हैं, गलती कर बैठते हैं। हम अपने नाम और प्रतिष्ठा के बारे में बहुत सोचते हैं, हमारा नाम होना चाहिए करके हम बहुत सारे लिखते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं कि हम इतने सारे पेपर लिखे हैं। तो ये इस चक्कर में हमको पढ़ना नहीं चाहिए। हमारे पास बहुत ही इंटेलेक्चुअल वर्क करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं, फुर्सत नहीं है। तो इसीलिए क्या होता है कि गलती हम कर बैठते हैं। बहुत सारे पॉलिसीज है, बट हमारे पास क्या होता है कि जो गलती करता है उनको पनिशमेंट नहीं मिलता। इससे क्या होता है कि जो अच्छा काम करने वाला है वो बहुत डिस्करेज होता है। तो बहुत सारे प्लेजारिज्म के इश्यूज होते हैं, बट उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। बहुत सारे ऐसे जर्नल्स है कि जो आर्टिकल पब्लिश करते हैं, उनको मालूम है कि आपने अच्छा नहीं लिखा है, फिर भी वो पब्लिश करते हैं। क्योंकि क्या है ना, एक आर्टिकल पब्लिश करने में वो लोग थोड़ा बहुत पैसा लेते हैं आपसे, तो ताकि एक बिजनेस मॉडल बने, है ना। तो ये सारे इश्यूज हम देखते हैं, आप भी देखे हैं, आप इसको महसूस किया है, अनुभव किया है। तो इस रीजन की वजह से क्या हो रहा है, प्लेजारिज्म बढ़ रहा है। जैसे मैं बोला, इंटरनेट के एक क्षेत्र में क्या हो रहा है कि बहुत सारे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। आजकल लाइब्रेरी में जाके पढ़ने वाले लोगों का संख्या कम होते जा रहा है, ये घटते जा रहा है। क्योंकि इंफॉर्मेशन तो आपकी स्क्रीन पर है, इंफॉर्मेशन तो आपके गूगल दे रहा है। तो ये सारा चीजों को यूज करके हम आर्टिकल लिख रहे हैं। तो इसमें सही ये क्या है, गलत क्या है, हमको देखना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लाइब्रेरी में आना चाहिए और इंटरनेट नहीं देखना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई भी एक सोर्स या बुक को पढ़ेंगे, ऑनलाइन पढ़िए या लाइब्रेरी में पढ़िए, उसको प्रयोग करेंगे जो आपकी संशोधन पेपर में या पुस्तक में या बुक लिखते हैं। तो ये कहीं भी आप इसका प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं, तो फिर उसको सही एक स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको करना है।
जो भी एथिक्स सेट किए हैं आपके इंस्टीट्यूट या पब्लिशर, उसको फॉलो करना है। तो अंत में क्या है कि पुअर रिव्यू है। रिव्यू क्या होता है कि आप अच्छे जर्नल को नहीं लिखते हैं तो फिर वहां तो रिव्यू अच्छा ही नहीं करेंगे, आप जो भेजेंगे वो छाप देते हैं, तो ये गलत हो जाता है। तो ये पीयर रिव्यू क्या होता है? पीयर ये वर्ड का मतलब ये है कि जो एक्सपर्ट्स का एक ग्रुप है, एक समूह है, जो जो बहुत ही एक्सपर्ट्स है, अपने अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट्स है, उनका एक समूह है, एक ग्रुप है। एक जर्नल क्या करता है कि अलग अलग एक्सपर्ट्स, अलग अलग एरिया के लोगों को बुला के एक पैनल बनाता है, एक बोर्ड बनाता है। तो जब भी कोई भी एक पेपर बेचता है, बुक पब्लिश करने के लिए एक पब्लिशर को बेचता है, तो फिर ये पीयर रिव्यू बोर्ड क्या करता है, उसका इवैल्यूएशन करते हैं, छानबीन करते हैं कि ये सच में सही लिखा है क्या है, हमको हमारे पब्लिशिंग फॉर्म में इसका सही यूज है, हमारे जर्नल में इस आर्टिकल को हम पब्लिश करने जैसा लायक है। तो इस चीज़ों के बारे में देखा जाता है। कभी कभी क्या होता है कि जब आप सबमिट करते हैं तो फिर इसको रिजेक्शन करते हैं, क्योंकि एडिटोरियल बोर्ड अलग होता है, रिव्यू बोर्ड अलग होता है। कभी कभी ये दोनों एक ही होता है। एडिटोरियल बोर्ड देखता है कि आपका जो टाइटल है, आपने जो जिस विषय के ऊपर लिखा है, ये जर्नल को सही में यूज होता है क्या, मैच होता है क्या, वो चेक करते हैं। अगर मैच नहीं होता तो इसको रिजेक्ट करते हैं, आपको लिख देते हैं कि हम ऐसे आर्टिकल इस मुद्दा या इस विषय के ऊपर पब्लिश नहीं करते। अगर वो पब्लिश करते हैं तो देखते हैं कि जस्ट फर्स्ट स्क्रीनिंग में ही देखते हैं कि आपका आर्टिकल का क्वालिटी कैसा है। अच्छा क्वालिटी रहा तो फिर एक्सटर्नल पीयर रिव्यू के लिए भेजते हैं, जो एक बोर्ड रहता है एक्सपर्ट्स का, उनको भेजते हैं। उनको लगा कि इसमें रिवीजन होना चाहिए तो फिर रिवीजन करने के लिए आपको बोलते हैं, नहीं तो फिर वो अच्छा नहीं लगा तो वो लोग रिजेक्ट करते हैं। अगर उन्होंने रिवीजन करने के बाद आपने रिवीजन करके उसको भेज दिया, आपका आर्टिकल बहुत ही अच्छा है, तो फिर वो एक्सेप्ट करते हैं और पब्लिश करते हैं। ये क्या होता है कि पीयर रिव्यू होता है। तो अभी हम इस विषय के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है कि पीयर रिव्यू होता कैसे। आप कोई भी पेपर पब्लिशर को भेजते हैं तो फिर इतने प्रकार के रिव्यू होते हैं। सिंगल ब्लाइंड बोले तो क्या है, आप ऑथर हो, आपको मालूम नहीं कि आपका पेपर कौन पढ़ रहा है, तो बट ये पढ़ने वाले आदमी को मालूम है कि कौन लिखा है, तो इसको हम बोलते हैं सिंगल ब्लाइंड। ब्लाइंड बोले तो क्या है कि इसमें पारदर्शिता होना चाहिए, इसमें थोड़ा कॉन्फिडेंशियलिटी होना चाहिए। ये जब भी हम पेपर लिखते हैं एग्जाम में, तो कौन चेक करता है पेपर हमको मालूम नहीं। कभी आपने देखा है कि आपके 10th के एग्जाम का पेपर हो, आपका डिग्री के एग्जाम का पेपर हो, कभी कोई टीचर आके आपको बोलता है कि मैं आपका पेपर इवैल्यूएट किया, आपको मैं ज्यादा मार्क्स दिया है, आपको मैंने कम मार्क्स दिया है, ये कभी नहीं बोलते। तो पेपर लिखना क्या होता है कि आपका नाम पेपर जो चेक कर रहा है उनको मालूम है, बट वो भी आजकल कॉन्फिडेंशियल रखते हैं कि कौन लिखा है और कौन चेक कर रहा है, ये दोनों चीजों को कॉन्फिडेंशियल रखते हैं। अगर ये दोनों चीजों को कॉन्फिडेंशियल रख दिया तो उसको डबल ब्लाइंड रिव्यू होता है। तो इसका मतलब है कि रिव्यूअर को मालूम नहीं कौन लिखा है, ऑथर को मालूम नहीं कि कौन रिव्यू किया है। एक ओपन रिव्यू होता है, इसका मतलब है कि दोनों लोगों को मालूम है कि मेरा पेपर कौन पढ़ रहा है, रिव्यू कौन कर रहा है, और रिव्यूअर को ये मालूम है कि किसने ये पेपर को लिखा है। इसको ओपन रिव्यू बोलते हैं। आजकल ये भी काफी सारे प्लेटफॉर्म पर चल रहे हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल जर्नल्स ओपन रिव्यू में बिलीव कर रहे हैं। इसका एक ही मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुड़े, क्योंकि क्या ना, वेबसाइट में अपलोड कर देते हैं पेपर को, कोई भी इसके बारे में रिव्यू कर सकता है, कोई भी कमेंट कर सकता है। फॉर एग्जांपल, हम फेसबुक में कोई भी एक फोटोग्राफ अपलोड करने के बाद हमारे फ्रेंड्स उसके बारे में कमेंट करते हैं, बाकी अलग लोग नहीं कर सकते। बट ओपन रिव्यू में ऐसे हो सकता है कि आपके पेपर पब्लिशर अपने वेबसाइट में रखता है और उसको कोई भी कमेंट कर सकता है। तो ये कमेंट से क्या होता है कि पेपर का वैल्यू जोड़ा बढ़ जाता है, पेपर का क्वालिटी बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत सारे सजेशंस आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। एक है थर्ड पार्टी रिव्यू, ऐसी होती है कि जो पेपर को पब्लिशर दूसरे एक एक्सपर्ट को भेजता है, वो कहीं भी यूनिवर्सिटी में बैठा है, कोई भी इंस्टीट्यूट में बैठा है, वहां से वो रिव्यू करके भेजेंगे। कोलैबोरेटिव रिव्यू ऐसा होता है कि जहां 2-3 लोग मिलके रिव्यू करके फिर एक ही रिपोर्ट सबमिट करते हैं। किसको सबमिट करते हैं? पब्लिशर को सबमिट करते हैं। उसको हम बोलते हैं कोलैबोरेटिव रिव्यू बोलते हैं। जैसे कि आपका नैक आता है, नैक कमेटी कभी भी ऑडिट करने के लिए आपके कॉलेज में आता है, तो कभी भी अपना खुद का रिपोर्ट नहीं देते हैं, वो तीनों लोग बैठ के एक ही सिंगल रिपोर्ट बना के इंस्टीट्यूट को देते हैं। इसको हम बोलते हैं कोलैबोरेटिव रिव्यू बोलते हैं। पोस्ट पब्लिकेशन रिव्यू भी बहुत ही काफी आज चर्चित में है। आपने पब्लिश किया है एक पेपर, आपका पब्लिश किया हुआ पेपर को भी लोग रिव्यू कर सकते हैं, ऐसे भी एक मॉडल शुरू हुआ है।
तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पेपर पब्लिश कर दिया, आपका पेपर रिव्यू किया है तो फिर कोई भी उसको रिव्यू नहीं करेगा। तो ये भी हो सकता है कि आगे जाके गवर्नमेंट इसको मैंडेटरी कर सकता है कि आपका पब्लिश हुआ पेपर या थीसिस हो उसके बारे में भी अभी भी रिव्यू करे, तो ये भी संभावना है। देखिए इसके बारे में मैं बोला है ऑलरेडी आपको, ओपन रिव्यू क्या होता है, आपका आर्टिकल वेबसाइट में रखते हैं तो इसको कोई भी आदमी इसको कमेंट कर सकता है। तो इसका एक एडवांटेज है कि आपका पेपर अच्छा बन सकता है। तो ये मेरा एक लेखन है, ये मेरा आर्टिकल है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ब्लॉग में मैंने लिखा था। इस लेखन का एक मूल उद्देश्य ये है कि इस लेखन में मैंने क्या लिखा है कि यूजीसी पिछले 10 साल में जो भी अवार्ड हुए पीएचडी उसको रिव्यू करना चाहता है। जैसे मैंने अभी आपको बता दिया, आपका अवार्ड होने तक ही रिव्यू होता है, आपका अवार्ड होने के बाद रिव्यू नहीं होता है, कुछ भी कोई भी कमेंट नहीं करता है। बट यूजीसी ऐसे एक स्टैंड लिया है कि 2019 में कि पिछले 10 साल में जितने पीएचडी अवार्ड हुए हैं उसको रिव्यू करेगा। तो इसका मकसद ये है कि हमारे भारतीय विश्वविद्यालय जो भी है वो एक बहुत ही क्वालिटी लेवल के थीसिस को प्रोड्यूस करे, उसका मकसद ये है। तो इस प्रेजेंटेशन या इस स्लाइड से हम ये जान सकते हैं कि हम आज जो भी लिखेंगे उसको क्वालिटेटिवली लिखेंगे, क्योंकि क्या ना आपके भविष्य में आपका गलत लिखा हुआ पेपर की वजह से आपको नुकसान नहीं होना चाहिए, आपका जॉब नहीं जाना चाहिए, आपको मेमो नहीं मिलना चाहिए, आपके ऊपर कंप्लेंट नहीं आना चाहिए। इसीलिए आज जो आपके हाथ में है, टुडे इज इन योर हैंड, सो whatever you do you need to do ethically right, okay? तो आप एथिकली बहुत सही उसको करना है। कभी भी आपको बेखाव में आके कंपटीशन के लक्ष्य में या प्रमोशन के लक्ष्य में आप गलती नहीं करना है, आप थोड़ा मेहनत करना है इसमें। आप विद्यार्थी हो या संशोधनार्थी हो या अध्यापक हो, मैं तीनों लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ कि आप जो चीज़ों को बहुत फास्ट करना चाहते हो वहाँ आप गलती कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको ये कभी भी याद रखना है कि भविष्य में आपको कोई भी तकलीफ नहीं होने के लिए आपको सही तरह से आज आपको सही काम करना है। दोस्तों मैं आज अभी एक स्लाइड इसमें डाला है कि एकेडमिक्स इन साउथ कोरिया कॉट नेमिंग किड्स एज को-ऑथर्स। आप ये इमेजिन कर सकते हैं साउथ कोरिया में ऐसे एक अध्यापक या रिसर्चर्स को फाइंड आउट किया गया है कि जो लोग अपने बच्चों का नाम रिसर्च पेपर में लिखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अपने बच्चे बड़े होने के बाद कोई यूनिवर्सिटी में या कोई कॉलेज में वो लोग जॉब मिलने के लिए उनको आसान होगा, क्योंकि क्या ना उन्होंने पेपर लिखा है करके दिखाया। तो ये बहुत ही गलत एक प्रैक्टिस है। आप सोच भी नहीं सकते ऐसे भी हो सकता है क्या। यहाँ लिखा है कि डजन्स ऑफ पेपर्स विद चाइल्ड ऑथर्स हु डिड नॉट कंट्रीब्यूट टू द वर्क हैव बीन आइडेंटिफाइड। तो ऐसे भी हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि ऑथर में 3 प्रकार है, इस 3 प्रकार को हमको अवॉइड करना है जितना हो सकता है उतना। ये पहला है कि गोस्ट ऑथर, आप इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं, उसको हिंदी में आप ट्रांसलेट किया तो हो जाएगा बूथ लेखक, ओके। तो ये गोस्ट ऑथर कौन होता है? गोस्ट ऑथर ऐसे एक आदमी होता है, एक्सपर्ट होता है कि जो आपके लिए लिखता है, आपके लिए पेपर लिखेगा, आपके लिए चैप्टर लिखेगा, बट वो कभी अपना नाम डालने के लिए आपको मजबूर नहीं करेगा। इसके बदले में क्या करेगा, आपसे वो पैसा ले लेगा, आपसे पैसा ले लेगा और आपको थीसिस लिख के दे देगा, आपको चैप्टर लिख के दे देगा, आपको पेपर लिख के दे देगा। तो ऐसे गोस्ट ऑथर का सख्त मनाही है। ये गोस्ट ऑथर का फिर भी एंटरटेन नहीं करता है एजुकेशन सेक्टर, कोई भी स्टैट्यूटरी बॉडीज इसको गलत ठहराता है। आप कभी भी किसी को आप बोलेंगे कि मेरा जो थीसिस है मैंने नहीं लिखा है, मैंने किसी से लिखवाया है, तो ये बहुत गलत हो सकता है। तो कभी भी गोस्ट ऑथर को आपको अवॉइड करना है। यहाँ सवाल ये उठ सकता है कि गोस्ट ऑथर के बहुत सारे एजेंसीज है, वो एजेंसी वाले बोलते हैं कि हम कंसल्टेशन देते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, तो इसको आपको मानना नहीं है, बिलीव नहीं करना है। देखिए जो भी है आपके मेहनत से करना है, क्योंकि डिग्री आपके नाम पे मिलता है, पीएचडी आपके नाम पे मिलता है, प्रमोशन आपका होता है, पैसा आप कमा रहे हो। तो कभी भी दूसरे का आप हेल्प लेके करना नहीं है। आप असिस्टेंस ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, सजेशन ले सकते हैं, किसी का मार्गदर्शन ले सकते हैं, बट आप at a stretch you can't ask somebody to write on your behalf. That's absolutely wrong. आप वैसे आपको करना नहीं है। इसको हम बोलते हैं गोस्ट ऑथर। गेस्ट ऑथर या ऑनररी ऑथर या म्यूचुअल ऑथर ऐसे होता है कि वो लोगों का कुछ भी डिस्टिंक्ट कंट्रीब्यूशन आपके पेपर में नहीं रहता है, बट फिर भी आप क्या करते हैं, उनका नाम आप जोड़ देते हैं। आप उनका नाम इसके लिए जोड़ते हैं कि क्योंकि वो फेमस है,
क्योंकि वो आपके एचओडी है, क्योंकि वो आपके लेक्चरर है, क्योंकि वो बहुत अच्छे पोजीशन में है, क्योंकि वो आपको बहुत सारे फ्यूचर में फ़ायदा करके देने वाले हैं, तो उनको इम्प्रेस करने के लिए आप क्या करते हैं, ऑनररी या म्यूचुअल ऑथर करते हैं। गिफ्ट ऑथर ये बहुत ही, ये भी गलत है, क्योंकि क्या है ना, इसी सेम प्रकार के गिफ्ट ऑथर बोले तो किसी को हम इम्प्रेस करने के लिए उनका नाम डालते हैं, whose contribution is based solely on the unsubstantial affiliation with the study। तो उनको हम क्या करते हैं, एक गिफ्ट ऑथर करके, उन्होंने, उनसे आपने कंसल्टेशन लिया है, उनसे आपने पूछा है, कुछ गाइडेंस लिया है, बट फिर भी उनका भी नाम आप डालना चाहते हैं। तो इस तीनों प्रकार के ऑथर को आपको अवॉइड करना है। आप कोशिश ये करना है कि लोगों से उसका सलाह ले लीजिए, आप जो भी लिखते हैं उसको पूछ लीजिए कि आपने सही लिया है क्या नहीं, गलत लिखा है। एक्नॉलेजमेंट में आप ये लास्ट में पेपर में आप लिख सकते हैं कि आप किस किस से सहाय लिया है, हेल्प लिया है। तो अभी हम बात करने वाले हैं ये प्लेजरिज्म होता क्या है। जैसे जितिन जी ने बताया शुरुआत में कि प्लेजरिज्म एक ऐसी चीज है, मैं एग्जैक्टली पढ़ूंगा नहीं इसको, बट मैं आपको जस्ट समझाऊंगा। आप सबको मालूम है, जो चीज, जो वाक्य है, जो सेंटेंस है, जो शब्द है, जो मूल उसका अर्थ है, ये सारे चीजों को हम अपने पेपर में लिखते हैं, बट हम जिनसे लिए हैं इसको उनको थैंक्स नहीं बोलते हैं। जैसे कि मुझे एक अवकाश दिया, जो एक सुसंधि दिया है जो जितिन जी ने और जो श्री नारायण कॉलेज ने दिया है कि मुझे लेक्चर में बात करने के लिए, अगर मैं बात कर दिया और मैं किसी को थैंक्स नहीं बोला कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिया है करके, तो ये बहुत गलत होता है। दिस इज नॉट ए राइट ह्यूमन टेंडेंसी, या एक ह्यूमन नेचर ऐसे नहीं होना चाहिए कि किसी को हम थैंक नहीं बोलेंगे। तो दोस्तों, इसमें दो प्रकार के चीज़ों को हमको ध्यान में रखना है, एक कॉपिंग है, एक पैराफ्रेजिंग है। तो कॉपिंग क्या होता है कि आपने कॉपी कर दिया, आपके पेपर में पेस्ट कर दिया, तो ये तो बहुत गलत है। भले आप किसी का नाम लिखे उसमें, किसी कहाँ से लिया है वो लिखे तो भी, बट कॉपिंग करना गलत है। बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में आप कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, उसको डबल कोट में आपको लिखना है। आगे हम देख लेंगे कि क्या ऐसे कर सकते हैं। पैराफ्रेजिंग ऐसे होता है कि ये पैराफ्रेजिंग को सीखना बहुत ही जरूरत है। पैराफ्रेजिंग बोले तो ऐसा है, आप ये पूरा पैराग्राफ को पढ़ना है और आप अपने खुद के वर्ड में उसको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक कथा सुना, एक स्टोरी सुना, वो स्टोरी जो सुना है या कोई पढ़ा है, उस स्टोरी को अपने वर्ड में लिखना है। तो इससे क्या होता है, आपको प्लेजरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर आपको गलत नहीं ठहराएगा। तो दोस्तों, दो चीजों को आपको ध्यान रखना है, कॉपिंग और पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग एक आर्ट है, एक स्किल है। पैराफ्रेजिंग सबको नहीं आता है। पैराफ्रेजिंग करने के लिए किसको आता है, जो लोग ज्यादा पढ़ते हैं, जो ज्यादा लिखते हैं। तो इसीलिए जो लोग ज्यादा पढ़े नहीं, ज्यादा लिखे नहीं है, तो उनको मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, मेरा एक ही विनम्र एक अनुरोध है कि वो लोग इसमें ज्यादा ध्यान दे दें, पैराफ्रेजिंग में ध्यान दे दें। कभी भी आप एक रिसर्च पेपर लिखना चाहते हैं तो एग्जैक्ट वर्ड्स जिस बुक में आपको मिलते हैं उसको मत लीजिए, वो पूरा पैराग्राफ को पढ़ लीजिए, पूरा चैप्टर को पढ़ लीजिए, उसमें क्या जिस्ट है उसी चीज को आप अपने पेपर में लाइए। इससे क्या होता है कि आपका एक पेपर बहुत ही अच्छा हो जाता है, क्योंकि क्या ना 90% जो वर्ड्स है पेपर में आपके खुद के वर्ड्स ही हो जाएंगे। तो जब भी प्लेजरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर में उसका चेक किया जाएगा तो कभी भी ये सॉफ्टवेयर ये नहीं बताएगा कि आप बहुत सारे वर्ड्स को अलग अलग सोर्सेस से लिया है, ये नहीं बताता है। तो प्लेजरिज्म होता क्या है, किसी एक का वर्क या पेपर को लेके उसको अपने पेपर में डालने का और उनका नाम नहीं डालने का, उनको एक्नॉलेज नहीं करने का, तो ये प्लेजरिज्म होता है। तो प्लेजरिज्म का मीनिंग भी अलग होता है, क्योंकि क्या ना, अभी आप सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो प्लेजरिज्म का मीनिंग अलग होता है। फॉर एग्जांपल, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, समझिए, वो क्या बोलता है कि प्लेजरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर अगर आपके पेपर में 15% प्लेजरिज्म है बताता है, प्लेजरिज्म एग्जैक्टली नहीं बताता है, कोई भी प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर है वो प्लेजरिज्म नहीं बताता है, बल्कि वो सिमिलैरिटी इंडेक्स बताता है, सिमिलर टेक्स्ट के बारे में बताता है। तो प्लेजरिज्म पकड़ में आती है किसको, एक्सपर्ट्स को आती है, सॉफ्टवेयर पकड़ता नहीं। सॉफ्टवेयर एक ही चीजों के बारे में बात करता है कि मेरे सॉफ्टवेयर में आप एक आर्टिकल डाल देंगे तो फिर उसका सही में कितना सिमिलर टेक्स्ट मेरे डेटाबेस में मिलेगा, आपके पेपर के कितने टेक्स्ट मेरे डेटाबेस से मैच होता है, तो उसको हम बोलते हैं सिमिलैरिटी इंडेक्स बोलते हैं, सिमिलैरिटी टेक्स्ट बोलते हैं। तो ये प्लेजरिज्म का डेफिनेशन कैसे चेंज हो रहा है। अगर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स बोलता है कि 15% अपने प्लेजरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर बताता है कि आपका इतना प्लेजरिज्म है या सिमिलरिटी इंडेक्स है, तो ये प्लेजरिज्म है।
MIT इंस्टीट्यूट बताता है कि 10% हुआ तो ही वो प्लेजरिज्म नहीं है, 10% के ऊपर हो गया तो प्लेजरिज्म है ना। तो ये अलग अलग लोगों का अलग अलग व्याख्यान है, बट मूल रूप से व्याख्यान क्या है या उसका डेफिनेशन क्या है प्लेजरिज्म का? जो भी एक सोर्स से आप अपने आइडिया लेते हैं, किसी का आइडिया लेते हैं, किसी का वर्ड्स लेते हैं, शब्दों को लेते हैं, या वो शब्दों को लेके आप अपने पेपर में यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, बट उनका नाम आप थैंक्स नहीं बोलते, उनका नाम आप साइटेशन नहीं देते, उनका साइटेशन आप नहीं देते हैं, तो फिर ये प्लेजरिज्म होता है। दूसरी प्लेजरिज्म के बारे में मैंने बात किया, जो सॉफ्टवेयर है, जो सॉफ्टवेयर चेक करता है और बताता है कि आपका 15% है, 20% है, इसका मतलब ये है कि वो सिमिलैरिटी बता रहा है। आपके जो पेपर में जो वर्ड्स है, वो वर्ड्स उनके डेटाबेस से मैच होके बताता है कि ये कैलकुलेशन बताता है कि ये 15-20% आपका सिमिलर है करके। दोस्तों, मैं आपसे सभी से अनुरोध करता हूं कि आप इस रेगुलेशन को पढ़ना बहुत जरूरत है। ये रेगुलेशन जस्ट 3-4 पेज का है, बहुत ही सिंपल है। 2018 में ये रेगुलेशन आया था, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन प्रमोशन ऑफ एकेडमिक इंटीग्रिटी एंड प्रिवेंशन ऑफ प्लेजरिज्म इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2018। इसमें बहुत ही क्लियरली लिखा है कि आप जब भी आपका थीसिस या पेपर सबमिट करते कोई भी इंस्टीट्यूट को, उसमें 10% का सिमिलरिटी आ गया, 10% के प्लेजरिज्म आ गया, 10% के सिमिलर टेक्स्ट आ गया, तो उसको हम छोड़ सकते हैं, उसको हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि इसमें पेनाल्टी की जरूरत नहीं, उसमें प्लेजरिज्म हुआ है करके हमको बोलने की जरूरत नहीं है। अगर वो 11% हो गया तो उसको बोलते हैं प्लेजरिज्म हुआ है। तो फिर यूजीसी क्या बोलता है कि आपके पेपर हो, चैप्टर हो, बुक हो, 10% के ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि इवन 10% भी नहीं होना चाहिए। आप तो बहुत ही काफी अच्छा पेपर लिखना है। आपका एक प्रश्न हो सकता है कि जो साहित्य के विद्यार्थी है, जो इंग्लिश है, हिंदी है, उनको ये प्रश्न उठ सकता है कि क्योंकि आप काफी सारे जो टेक्स्ट है, आप कविता को साइट करेंगे, कविता को कोट करेंगे, आप एक लेखन को कोट करेंगे, बहुत बड़ा पैसेज को कोट करेंगे, क्योंकि आपका साहित्य के विद्यार्थी है। आप कभी कभी ऐसे टॉपिक लेते हैं कि जो आपको मजबूरन आपको उस वाक्य को लेना पड़ता है, सेंटेंस को लेना पड़ता है, पैराग्राफ को लेना पड़ता है। तब क्या होता है कि प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर मार्क कर देता है कि आपके पेपर में बहुत सारा कॉपी पेस्ट टेक्स्ट है। ऐसे कभी होता है तो फिर आपको क्या करना है कि अगर आपका सिमिलरिटी इंडेक्स 20% आ रहा है, 30% आ रहा है, आप कभी भी उसको पैराफ्रेज नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी कविता को आप पैराफ्रेज नहीं कर सकते। कविता कविता है, उसको आप एज इट इज ही आपको डालना है। अगर कोई डायलॉग आप अपने रिसर्च पेपर में लिख रहे हैं, किसी का डायलॉग जो पेपर बुक में पढ़ा है, उसको आप पैराफ्रेज नहीं कर सकते। पैराफ्रेज का मतलब क्या है, मैं फिर से बताना चाहता हूँ। पैराफ्रेज का मतलब है कि जो चीज आप पढ़े हैं, जो चीजों को आप रीड कर रहे हो, उसको अपने खुद के वर्ड में लिखना है, पढ़ना है, लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं पढ़ लिया, फिर बाद में मेरे खुद के वर्ड में मैंने अपने पेपर में लिखा, उसको हम बोलते हैं पैराफ्रेजिंग बोलते हैं। आप भले अपने वर्ड में लिखने के बाद भी ए सोर्स को आप साइट करना है, तो इसको बोलते हैं पैराफ्रेजिंग। तो मैं जो चीज मैं बात कर रहा था, आप ध्यान से सुनिए कि साहित्य के विद्यार्थी को ये बहुत दिक्कत होती है कि जो आपको कविता को एज इट इज आपके पेपर में लाना पड़ता है, डायलॉग्स को लाना पड़ता है, पैराग्राफ को लाना पड़ता है। तो इसमें आप प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर में आपका पेपर या चैप्टर चेक करने के बाद आपका प्लेजरिज्म का लेवल या सिमिलरिटी इंडेक्स 10% के ऊपर हो गया, तो फिर आपको अपने गाइड का सहाय लेना बहुत ही जरूरत है, क्योंकि गाइड ही एक ऐसे आदमी है कि जो सर्टिफाई कर सकता है कि इनका जो पेपर है सही है, इन्होंने जो कोट किया है वो सही है, इसको पैराफ्रेज नहीं कर सकते, कुछ चीजों को अपने वर्ड में लिख नहीं सकते, तो इनको एक्सक्यूज किया जाए। तो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज इस रिक्वेस्ट को मानते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, अलाउ करते हैं, परमिशन देते हैं। तो प्लेजरिज्म में टाइप्स क्या है, कितने प्रकार के प्लेजरिज्म है? प्लेजरिज्म ऑफ वर्ड्स हो सकता है, बहुत सारे वर्ड्स हम लेते हैं, उसको हम क्या ना सिनोनिमस में टर्न कर देते हैं। इन द सेंस, एक मैंने फॉर एग्जांपल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, मैं कहीं से इसको कॉपी किया, वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को मैं निकाल के पर्सनल मैनेजमेंट कर दिया, लेबर मैनेजमेंट कर दिया। तो फिर मैं वर्ड्स को चेंज कर रहा हूँ, जानबूझ के कर रहा हूँ, ताकि क्या ना मेरा ज्यादा सिमिलैरिटी ना आए। प्लेजरिज्म ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है कि मेथोडोलॉजी, बहुत सारे टाइम में पेपर में मेथोडोलॉजी करके एक सेक्शन रहता है। आपके हिंदी के जो अभ्यासिक है, जो संशोधन में है,
शायद मुझे लगता है कि ज़्यादा आप उतना मेथोडोलॉजी का प्रयोग नहीं करते हैं। आप मेथोडोलॉजी करके इसे सेपरेट पैराग्राफ नहीं लिखते हैं, बट मेथोडोलॉजी सब सब्जेक्ट, वेदर इट इज इंग्लिश और हिंदी और साइंस और टेक्नोलॉजी और मेडिसिन, मेथोडोलॉजी इज रिक्वायर्ड, बट द वे वी राइट that differs from subject to subject. So in this case what I am telling is स्ट्रक्चर को भी कॉपी करते हैं। कॉपी करना गलत नहीं, बट आपको एक्नॉलेज करना है, साइट करना है कि कहाँ से आपने ये मेथोडोलॉजी को लिया है। प्लेजरिज्म ऑफ आइडियाज होता है कि आइडियाज ऐसा होता है कि कोई एक अच्छा आइडिया आपने बुक में पढ़ा है वो, या कोई लेक्चर में वो आइडियाज को सुना है, बट आप अपने पेपर में उस आइडिया को साइट नहीं करना चाहते, एक्नॉलेज नहीं करना चाहते, थैंक्स नहीं बोलना चाहते, ये भी एक प्लेजरिज्म है। प्लेजरिज्म ऑफ ऑथरशिप है, ऑथरशिप कोल्यूजन, ऐसी एक ऑथरशिप है कि जैसे मैंने 3 प्रकार के ऑथरशिप के बारे में बता दिया, किसी दूसरे का नाम डालने का, किसी दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए उनका नाम डालने का, किसी का बिना परमिशन लेके उनका नाम डालना है, को जो व्यक्ति एक्चुअली में अस्तित्व में नहीं है, जो व्यक्ति है ही नहीं है, उनका नाम डालने का जानबूझ के, तो ये सब करना बहुत गलत है। जैसे कि मैंने बताया कि सेल्फ सोर्सेस जो होते हैं, आपके पुराने पेपर होते हैं, उसी को भी आप क्या करेंगे कि उसको ही थोड़ा रिमिक्स करके, रिवाइज करके, थोड़ा टाइटल चेंज करके पब्लिश करना, ये सारे चीज गलत है। तो कभी ना कभी ये पकड़ा जाएंगे, तो इसीलिए आपको वैसे विषयों के ऊपर ज्यादा आपका समय गंवाना नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे प्रकार है प्लेजरिज्म में, मैं ज़्यादा इस स्लाइड को मैं डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। एनीवे मैं पीपीटी आप सबको देने वाला हूँ, तो फिर आप इसमें से पढ़ सकते हैं। ये जस्ट एक एग्जांपल है कि कैसे लोग एक साहित्य चोरी करते हैं, तो उसके बारे में है। तो ये बहुत अहम है, ये स्लाइड में आपको जो दिखा रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है कि आप तो साहित्यिक विद्यार्थी जो है वो लोग इमेजेस ज़्यादा यूज नहीं करते, बट जैसे साइंस होता है, साइंस टेक्नोलॉजी मेडिकल साइंस होता है, वहाँ इमेजेस का बहुत यूज होता है, पिक्चर्स का, फोटोग्राफ्स का बहुत यूज होता है। बहुत सारे टाइम में ऐसे होता है कि आपको एक इमेज, एक साइंस एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये फोटो लेने के लिए आपको लैब में जाना पड़ता है, आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। बट जो लोग एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते, जो शॉर्टकट लेना चाहते हैं, जो लोग एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते, जो शॉर्टकट लेना चाहते हैं, वो लोग इमेज को भी गड़बड़ कर सकते हैं। उसको हम क्रॉपिंग बोलते हैं। आप जो फोटोशॉप में करते हैं मालूम है, किसी का चेहरा किसी दूसरे को लगाने का। तो सेम चीज क्या होता है कि संशोधन में भी होता है, रिसर्च में भी होता है कि जो फोटोग्राफ्स को मॉडिफाई करते हैं, आपको लगता होगा कि ये सभी सेम है फोटोग्राफ, बट यहाँ थोड़ा गड़बड़ है, यहाँ थोड़ा चेंजेस किया गया है। जिस व्यक्ति ने इसको किया है उन्होंने संशोधन नहीं किया है, उन्होंने ऐसे ही लिखा है इसको। ठीक है, तो ये मैं शुरुआत में आपको बोला कि 2 प्रकार के प्लेजरिज्म होते हैं, एक इंटेंशनल होता है, एक अनइंटेंशनल होता है। तो इंटेंशनल ऐसे होता है कि जानबूझ के मुझे मालूम है गलती करना नहीं चाहिए, प्लेजरिज्म नहीं करना चाहिए, कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए, पैराफ्रेज करना चाहिए, बट मैं नहीं। तो अभी हम बात किए हैं अनइंटेंशनल और इंटेंशनल के बारे में। अनइंटेंशनल क्या होता है कि हम सिंसियर है बट गलती हमारे से होता है। फॉर एग्जांपल, हम कभी भी कोई भी वर्ड्स या शब्दों को, वाक्य को ले लेते हैं कोई दूसरे एक सोर्स से, ऑनलाइन हो सकता है, ऑफलाइन हो सकता है, बुक से हो सकता है, जर्नल से हो सकता है, तो उसको हम पैराफ्रेज सही तरह से नहीं किया है। अगर पैराफ्रेज आप सही नहीं किया तो फिर क्या ना, डबल कोट आपको यूज करना है। तो ये डबल कोट के बारे में बाद में हम जान लेंगे। बट पैराफ्रेजिंग ऐसी चीज होती है कि जो चीजों को आप पढ़े हैं उसको अपने वर्ड्स में लिखना है। इसका मतलब ये नहीं कि अपने वर्ड्स में लिखने के बाद आपको सोर्स को साइट नहीं करना है, अपने वर्ड्स में लिखने के बाद भी उस सोर्स को आपको साइट करना है। साइट बोले तो उसका रेफरेंस देना है। तो थर्ड चीज गलती कहाँ करते हैं हम, जो सिंसियर लोग हैं, जो कहाँ करते हैं कि वो लोग पुअरली कोट करते हैं। पुअरली कोट बोले तो कैसे कि कोटेशन मार्क जो होता है, जैसे आपने एक पैराग्राफ ले लिया, फॉर एग्जांपल ये पूरा पैराग्राफ मैंने लेके मेरे पेपर में पेस्ट किया, तो तब क्या होता है, ये आपके वर्ड्स नहीं है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डबल कोट देना पड़ेगा। तो इसलिए डबल कोट दिया तो इसका मतलब क्या है कि रीडर जो है, आपके पेपर जो पढ़ रहा है, उनको समझ में आएगा कि ये पूरा पैराग्राफ ये लेखक का नहीं है, ये ऑथर का नहीं है, इन्होंने किसी दूसरे सोर्स से लेके इस पेपर को लिखा है। और ब्रैकेट में क्या होना चाहिए, उस ब्रैकेट में उस ऑथर का नाम होना चाहिए। तो अगर आपने पैराफ्रेज ठीक तरह से नहीं किया, अगर आपने कोट ठीक तरह से नहीं किया, तो प्लेजरिज्म होने का चांसेस है। उसको हम बोलते हैं अनइंटेंशनल प्लेजरिज्म बोलते हैं।
साइटिंग पुअरली बोले तो क्या होता है कि आप बहुत अच्छा लिख रहे हो, पेपर बहुत अच्छा लिख रहे हो, चैप्टर अच्छा लिख रहे हो, बट क्या ना गलती से क्या है ना साइटेशन देना भूल गया। कभी कभी हम भूलते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि जब भी आप पेपर लिखते हो, चैप्टर लिखते हो या डिसर्टेशन थीसिस लिखते हो, कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को उसको रिव्यू करने के लिए देना है, उनका सजेशन लेना है, उनको थोरोली देखने के लिए बोलना है। तो इससे क्या होता है कि आपको समझ में आता है कि गलती से अनजाने में unknowingly you must have committed some mistake, so these people will point out and tell you that okay this is a mistake, so please edit it and correct it and then only you submit it for publication or the university। तो हमने अभी तक ये जान लिया है कि अलग अलग प्रकार के प्लेजरिज्म क्या होते हैं और इंटेंशनल प्लेजरिज्म क्या होता है, अनइंटेंशनल प्लेजरिज्म क्या होता है। तो कॉपीराइट और प्लेजरिज्म के बारे में काफी सारे हमारे पास सवाल है, प्रश्न है। कॉपीराइट और प्लेजरिज्म सेम है क्या? नहीं, दोनों सेम नहीं है। कॉपीराइट क्या है कि एक लीगल एक इश्यू है, वो क्राइम हो सकता है। अगर आपने पूरा बुक चोरी करके आपने खुद छाप लिया तो फिर ये चोरी हो सकता है, गलत हो सकता है। कॉपीराइट क्योंकि कॉपीराइट में क्या है कि परमिशन की जरूरत है, आप परमिशन लेके कुछ भी कर सकते हो। बट जहां प्लेजरिज्म की बात है, प्लेजरिज्म कभी भी एक्नॉलेजमेंट के रिलेटेड है। एक्नॉलेजमेंट बोले तो जो सहाय किया है, आपको हेल्प किया है, उनको थैंक्स बोलना है। जिस बुक से आपने जो आइडिया लिया है, जो वर्ड्स लिया है, उसको आपको एक्नॉलेज करना है। इसको हम बोलते हैं एकेडमिक डिसऑनेस्टी बोलते हैं, बट ये एक्चुअली एक क्राइम है। कॉपीराइट में आप गलत करेंगे तो इसमें कोर्ट में जाना पड़ेगा, आपको फाइन भरना पड़ेगा, इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। बट यहाँ प्लेजरिज्म में क्या होता है, आपने साहित्यिक चोरी किया है तो फिर ये अनएथिकल, ये एथिक्स रिलेटेड है। इसमें क्या होता है कि आपको डिग्री नहीं मिलेगा, मार्क्स नहीं मिलेगा, क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो ये हो सकता है। प्लेजरिज्म कॉपीराइट में जस्ट फर्क इतना है कि कॉपीराइट में आपको परमिशन लेना पड़ता है। कब लेना पड़ता है? आप समझिए कि कोई एक बुक को ट्रांसलेट करना चाहते हो, कोई एक बुक को सेल करना चाहते हो, कोई बुक को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो, पूरा बुक को आपको प्रिंट आउट लेना चाहते हो, कोई भी बुक का जेरोक्स लेना चाहते हो, तो एंटायर बुक को जेरोक्स लेना चाहते हो, तब कॉपीराइट वायलेशन हो सकता है, कॉपीराइट का उल्लंघन हो सकता है। बट प्लेजरिज्म क्या है कि एथिक्स के रिलेटेड है। प्लेजरिज्म में आपको करना इतना ही है कि आप जो भी चीज यूज कर रहे हो, जो भी आप रेफर कर रहे हो, उसको साइटेशन देना बहुत जरूरत है। तो एक कॉपीराइट में एक रूल आता है प्लेजर फेयर यूज। फेयर यूज बोले तो क्या है, अगर आपने कोई भी एक बुक से पढ़ा, बुक में पैराग्राफ पढ़ा और उसके बारे में आपने अपने पेपर में लिखा, तो इसको परमिशन लेने की जरूरत नहीं। तो ये फेयर यूज ये बोलता है कि टीचिंग, रिसर्च, पब्लिकेशन एक्टिविटीज के लिए आप कोई भी चीजों को यूज कर सकते हो, उसमें परमिशन की जरूरत नहीं। परमिशन की कब जरूरत पड़ती है आपको? आप उसको कमर्शियली यूज करना चाहते हो, आप उसको सेल करना चाहते हो, फोटोकॉपी करके उसको बाइंड करके उसको आप सेल करना चाहते हो, आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो, आप ऑथर का नाम निकाल के आप खुद का नाम डाल के उसको सेल करना चाहते हो, ऐसे चीजों में कॉपीराइट वायलेशन होता है। बट आप अपने एकेडमिक इंस्टीट्यूट में कोई भी चीज परमिशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्या ना आपका मकसद क्या है, इंटेंशन क्या है कि उसमें प्रॉफिट मेकिंग नहीं है। उसमें आप रिसर्च करना चाहते, अभ्यास करना चाहते, आप पढ़ाना चाहते हो, आप प्रेजेंटेशन देना चाहते हो, तो इसमें परमिशन लेने की जरूरत नहीं। ये प्रोविजन कहाँ मिलता है आपको? इंडियन कॉपीराइट एक्ट के फेयर यूज में मिलता है। ये सेक्शन 52 में ये प्रोविजन हमको मिलता है। अभी मैंने आपको शुरुआत में बोला कि साइटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे ये प्लेजरिज्म के जो विषय में। साइटेशन कभी भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, साइटेशन के स्टैंडर्ड अलग होते हैं। जैसे कि हिंदी, इंग्लिश जो लोग हैं, जो सब्जेक्ट के जो अध्यापक है, जो रिसर्चर है, वो लोग MLA यूज करते हैं, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन का यूज करते हैं। कभी कभी ये जो स्टैंडर्ड है हर एक पब्लिकेशन का अलग अलग होता है। आपके इंस्टीट्यूट या आपके यूनिवर्सिटी का, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी केरला में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला है, वहाँ के उनके खुद के स्टैंडर्ड हो सकते हैं। तो कभी भी आप पेपर लिखते हैं, कभी भी आप थीसिस लिखते हैं, तो फिर फर्स्ट काम आपको ये करना है कि साइटेशन स्टैंडर्ड क्या है, रेफरेंस देने का स्टैंडर्ड क्या है। उसमें दो प्रकार के होते हैं ब्रॉडली। एक होता है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का, कैसे रहते हैं, ऑथर डेट सिस्टम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ऑथर डेट सिस्टम। कभी भी आपने कुछ चीज लिखा है, ये कहीं से लिया है, तो फिर ऑथर का नाम और डेट लिखना है। ये डेट ऑफ बर्थ नहीं है, ऑथर का डेट ऑफ बर्थ नहीं है। इस 1992 में ये ऑथर ने बुक पब्लिश किया है, उस बुक में ये सेंटेंस मिले हैं। तो जिन्होंने ये पेपर लिखा है, जब भी वो किसी का आइडियाज यूज करेगा, आइडियाज को यहाँ व्यक्त करेगा, उस आइडिया को इन्होंने एक्नॉलेज किया है। इस सोर्स से मैंने इस
व्याख्या को लिया है, दैट इज 1992। तो ऐसे अलग अलग ऑथर, इसको बोलते हैं इंटेक्स्ट साइटेशन। जो बॉडी आपका टेक्स्ट के बॉडी है उसमें जो साइटेशंस आते हैं उसको हम इंटेक्स्ट साइटेशन बोलते हैं। बाहर जो आते हैं एट द एंड ऑफ द चैप्टर जो आते हैं उसको हम साइटेशन बोलते हैं, जस्ट साइटेशन बोलते हैं या रेफरेंसेस बोलते हैं। तो एक प्रकार का साइटेशन का तरीका ऐसा है कि ऑथर डेट सिस्टम है। दूसरा प्रकार ऐसा है कि जो दूसरे इंटेक्स्ट साइटेशन ऐसे होते हैं कि नंबर सिस्टम होता है, जैसे कि 13, 14, 15। 13 क्या है, 13 क्या है, 13 यहाँ है। यहाँ क्या है कि फॉस्टर का नाम कहाँ है, यहाँ। ये अल्फाबेटिकली अरेंज होता है, ये सीरियल नंबर वाइज अरेंज होता है। आपको मैं सही में एग्जाम्पल देना चाहता हूँ इसका। आप विकिपीडिया में आर्टिकल बहुत सारे पढ़े होंगे। विकिपीडिया नंबर सिस्टम को फॉलो करता है, नंबर सिस्टम को, और विकिपीडिया ऑथर सिस्टम को नहीं फॉलो करता है। तो मैं दिखाने का एक मकसद ये था कि आप साइटेशन स्टैंडर्ड को जानना बहुत ही जरूरी है। पिछले स्लाइड में मैं आपको बताया कि कोटेशन आपको सही यूज करना है। अगर आपने एग्जैक्ट वर्ड्स यूज किया है तो कोटेशन सही यूज करना है। इस केस में देखिए, फर्स्ट केस में देखिए, एग्जांपल मैं बता रहा हूं आपको कि कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं प्लेजरिज्म को। आपने ये पूरा एंटायर पैराग्राफ कोई भी एक सोर्स से ले लिया है, कोई भी एक बुक से लिया है, तो फिर इसमें ये नहीं दिख रहा है कि आप कहाँ से लिए हैं। इसमें कहीं ऐसे लग रहा है कि ये आपका खुद का वर्ड्स है। अगर आपने ऐसे ही लिख दिया तो फिर ये आपके खुद के वर्ड्स लगेंगे, आपको ऐसे नहीं लिखना है। दूसरा एक केस ऐसा है कि ये भी प्लेजरिज्म है, ये भी प्लेजरिज्म है। दूसरा ऐसा केस है कि इन्होंने अच्छा लिखा है, ये इंडिकेट करना चाहते हैं कि मैं ऐसे सोर्स से मैंने लिया है इसको, बट उन्होंने क्लोज नहीं किया इसको, इस कोटेशन को क्लोज नहीं किया है, तो ये भी गलत हो सकता है। अभी आप यहाँ देखिए, ये सही है क्योंकि इन्होंने क्या किया, ये पूरा सेंटेंस को इस बुक से लिया है, इस बुक से लिया है, और इन्होंने कोट भी किया है। कोट बोले तो डबल कोट्स डाला है। तो यहाँ एक प्रश्न उठता है कि सर हम ऐसे एग्जैक्ट कोट डाल दिया तो कोई भी पैराग्राफ को हम पेस्ट कर सकते हैं? देखिए, बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में आपको डबल कोट यूज करना है। इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आपको पैराफ्रेज सीखना बहुत जरूरत है। तो अगर आप पैराफ्रेज कर सकते हैं, इसको पढ़ के अपने खुद के वर्ड में लिख सकते हो तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। कभी कभी ऐसे करना मुश्किल होता है तो तब आप क्या कर सकते हैं, डबल कोट डाल के ऑथर का नाम लिख सकते हैं। तो इसको बोलते हैं ऑथर डेट सिस्टम। तो जब आप पैराफ्रेज कर रहे हैं तो फिर गड़बड़ क्या होती है कि हाँ तो डबल कोट नहीं है, तो आपको रीडर को दिखाना है कि आप पैराफ्रेज किया है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कभी भी ऑथर का नाम ऐसे बीच में आएगा, इसको हम बोलते हैं नैरेटिव साइटेशन बोलते हैं। जैसे कि शार्प इज ऑफ द ओपिनियन दैट एक्सपेरिमेंटल मेथड शुड बी फॉलोड इन ऑल केसेस ऑफ रिसर्च। तो इसमें शार्प क्या बोल रहे हैं, अपने खुद के वर्ड में आपने लिखा है, बट शार्प को आपने थैंक्स भी बोला है, साइटेशन भी दे दिया है। तो कभी आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मैंने पिछले स्लाइड में दिखाया, एज इट इज आपको करने के लिए नहीं हो रहा है, पैराफ्रेज करने के लिए नहीं हो रहा है, आपको खुद के वर्ड में लिखने के लिए नहीं हो रहा है, तब आप क्या कर सकते हैं, आप एग्जैक्ट सेंटेंस को कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, उसको डबल कोट डाल सकते हैं। तो डबल कोट डाला तो इसका ये इंडिकेशन है कि रीडर को कि ये जो सेंटेंस है यहाँ से लिया गया है, इसको ये ऑथर के नहीं है, जो आप लिख रहे हो आपके खुद के वर्ड्स नहीं है, ये वर्ड्स है शार्प के वर्ड्स है ना। बट इसमें एक कॉशन है, एक मेरा रिक्वेस्ट है कि हो सकता है तो कितना हो सकता है उतना आपको ट्राई करना है कि आप डबल कोट ज्यादा यूज ना करें, आपके खुद के वर्ड में आपको लिखना है, ठीक है। कभी कभी ये भी एक फॉर्मेट है कि ज्यादा आपने कॉपी पेस्ट किया, ज्यादा टेक्स्ट को आपने कोई सोर्स से लिया, तो इसको आप राइट इंडेंट करना रहता है। ये लेफ्ट इंडेंट है, आप देखिए जगह यहाँ गैप है, लेफ्ट इंडेंट है। और जो आपने कोट किया है, जो पैराग्राफ आपने कहीं से लिया है, तो इसको आपको राइट इंडेंट करना है। तो ये अलग अलग प्रकार के रूल्स है। आप इस रूल्स के लिए आपको स्टाइल गाइड पढ़ना पड़ेगा। स्टाइल गाइड बोले तो साइटेशन स्टाइल गाइड बोलते हैं हम, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का स्टाइल गाइड है, और मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन का स्टाइल गाइड है। आपकी यूनिवर्सिटी के अलग स्टाइल गाइड हो सकता है। कभी आप कोई पेपर, आप एक जर्नल को लिख रहे हैं तो उनका एक साइटेशन का स्टाइल गाइड रहता है। वो बोलते हैं कि आप ऑथर को ऐसे लिखो, एडिटर का नाम ऐसे लिखना है, इंटेक्स्ट साइटेशन को इस प्रकार से लिखना है। ओके, तो प्लेजरिज्म डिटेक्शन टूल क्या है? अभी तक हम प्लेजरिज्म के बारे में जाने, प्लेजरिज्म का प्रकार क्या है जाने, इंटेंशनल प्लेजरिज्म क्या होता है, अनइंटेंशनल क्या होता है वो हम देखे, और पैराफ्रेजिंग क्यों करना चाहिए हमने देखा, कोट कैसे करना है ये हमने देखा, तो खुद के वर्ड्स में लिखने के बाद साइटेशन कैसे देना है ये हमने देखा। तो ये सारा चीज मैंने क्यों बोल रहा हूँ मालूम है कि आप अगर इस चीज को फॉलो नहीं करेंगे तो आप प्लेजरिज्म का गलती कर सकते हैं।
चांसेस ये हो सकता है कि आप प्लेजरिज्म का गलती कर सकते हैं, क्योंकि प्लेजरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर से चेक किया जाएगा। आपका कोई भी पेपर पढ़ सकता है, उनको लग सकता है कि आपने सही तरह से नहीं लिखा नहीं इसको। तो इसीलिए क्या है ना, आपको साइटेशन की तरफ बहुत ही ध्यान देना है, कोटेशंस के ऊपर ध्यान देना है, एथिकल प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान देना है, आपको स्टैंडर्ड्स की तरफ बहुत ही ध्यान देना है। अभी हम बात करेंगे प्लेजरिज्म डिटेक्शन टूल के बारे में। आपको मालूम है कि प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर आजकल मिलते हैं, तो इसमें प्लेजरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर का एक ही एक लूप होल है कि एक लैकुना है, एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि उसको लैंग्वेज के जो टेक्स्ट है, जैसे कि हिंदी है, जो मराठी है, गुजराती है, कन्नड़ा है, इसको वो शोध नहीं करता, इसका सिमिलरिटी वो बताता नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे हिंदी लैंग्वेज का डिटेक्शन सॉफ्टवेयर नहीं करता है करके आपको प्लेजरिज्म करना है, आपको कॉपी पेस्ट करना है, ऐसे नहीं करना है आपको। क्योंकि देखिए सॉफ्टवेयर तो क्या है ना, वो इंसान नहीं है, उसको अकल नहीं है, उसको दिमाग नहीं है, उसको माइंड नहीं है, उनका एक अलग अलग लेवल की कैलकुलेशन है, उस हिसाब से वो सॉफ्टवेयर काम करता है। बट जो इंसान जो पढ़े लिखा है, एक्सपर्ट है, उनको सही में समझ में आता है कि आपने सही लिखा है क्या गलत लिखा है। तो इसीलिए आप कभी ये मत समझिए कि प्लेजरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर हिंदी के टेक्स्ट को सही तरह से ढूंढता नहीं है, तो इसीलिए आपको कुछ भी करना है, कुछ भी लिखना है, ऐसे मत कीजिए, है ना। तो मैं जस्ट जनरलाइज करके मैं बात कर रहा हूँ, प्लेजरिज्म डिटेक्शन को टूल करता क्या है। इट्स अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग सिमिलर टेक्स्ट यूजिंग अ टूल और सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर बहुत तरह के सॉफ्टवेयर है आजकल, पेड सॉफ्टवेयर है, फ्री सॉफ्टवेयर है ना। तो ये फ्री सॉफ्टवेयर से, पेड सॉफ्टवेयर है, पेड बोले तो आप पैसा दे के उसको यूज करना है, बहुत कॉस्टली होते हैं। टर्निटिन सॉफ्टवेयर 4 लाख के ऊपर, 5 लाख के ऊपर उसका रेट है। फ्री सॉफ्टवेयर भी है, बट मैं आपको ये स्लाइड दिखा रहा हूँ, बट मैं गलती से मैं ये रिक्वेस्ट आपको करता हूँ कि आप कभी भी फ्री सॉफ्टवेयर को यूज मत कीजिए। फ्री सॉफ्टवेयर को यूज करने से क्या होता है कि आप जब भी पेपर ऑनलाइन में डालते हो चेक करने के लिए, तो फिर वो पेपर आपका सेव हो सकता है उनके डेटाबेस में। मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, जब भी आप फ्री सॉफ्टवेयर, मैं ये नहीं बोलूंगा कि सब फ्री सॉफ्टवेयर ऐसे ही करते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर ऐसे हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, मैं तो एक हाइपोथेसिस बोल रहा हूँ आपको। जब फ्री सॉफ्टवेयर में आपका पेपर आप डालेंगे तो वो पेपर उनके डेटाबेस में सेव होने का चांसेस है, वो पेपर सेव होने का चांसेस है। तो इसीलिए आपको कभी भी आप एथिकली लिखिए। इसका सॉल्यूशन इतना ही है कि आप अच्छा तरह से लिखिए। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि आपने अच्छा लिखा है, तो आप 2-3 लोगों को पूछ लीजिए, एक्सपर्ट्स को दिखा लीजिए कि आपने सही लिखा है क्या नहीं। आपके जो भी समस्या है, शंका है, जो प्रश्न है, इसको सही व्यक्ति के पास आपको रखना है और पूछना है। तो आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी सब्सक्राइब नहीं किया है कि पेड सॉफ्टवेयर को, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली है, कॉलेजेस अफोर्ड नहीं कर सकते, कॉलेज के पास उतना पैसा नहीं कि वो लोग अफोर्ड कर सके। तो इसलिए आप अपनी यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी का मदद ले सकते हो। मैं यहाँ एक कंपैरिजन किया है कि टर्निटिन और उरकुंद जो भी सॉफ्टवेयर्स है, ये सभी सेम प्रकार के सिमिलरिटी इंडेक्स नहीं दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक छोटा सा ग्रोसरी शॉप में जाते हैं, तो आपको 10 तरह के बिस्किट मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू वांट टू बाय अ बिस्किट एंड यू हैव गॉन टू ग्रोसरी शॉप, एंड व्हेन यू आस्क फॉर बिस्किट, द वेंडर विल आस्क यू व्हाट काइंड ऑफ बिस्किट यू वांट। तो 10 प्रकार के बिस्किट है। बट वही आप मॉल में जाते हैं, एक बहुत बड़ा बिग बाजार या डीमार्ट में जाते हैं, वहां 20 प्रकार के बिस्किट मिलेंगे आपको। क्यों मिलेंगे? क्योंकि वो मॉल है, ग्रोसरी शॉप से भी मॉल बहुत बड़ा है, तो उनके पास बहुत सारे बिस्किट की प्रकार हैं। बट ग्रोसरी शॉप में बहुत छोटा दुकान है, एक शॉप है, उसमें 10 प्रकार के ही बिस्किट है। तो सिमिलरली क्या होता है कि प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर भी ऐसे ही काम करता है। जितना बड़ा सॉफ्टवेयर है, जितना उनके पास डेटाबेस बड़ा है, वो ज़्यादा पेपर्स को चेक कर सकता है, ज़्यादा सोर्स के पास जाके फिर वो सिमिलरिटी इंडेक्स बता सकता है। बट जो छोटे सॉफ्टवेयर है, वो आपका सिमिलरिटी इंडेक्स कम दिखा देगा। टर्निटिन ने आपका 20% सिमिलरिटी इंडेक्स दिखा दिया, तो उरकुंद आपका 18%, 15% दिखाता है। तो ये हो सकता है। तो यहाँ देखिए आप, ये सिमिलरिटी इंडेक्स है, दोनों सेम नहीं है, दोनों में फर्क है, कुछ ज़्यादा है, कुछ कम है। यहाँ देखिए सेम नहीं है। समझिए कि यहाँ सिमिलरिटी इंडेक्स 60% दिखा रहा है, बट उरकुंद ने 10% दिखा दिया है। तो ये गलती हो सकता है। तो लिमिटेशन भी है प्लेजरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर का, जैसे कि इमेज को डिटेक्ट नहीं करता है, टेबल को ठीक तरह से डिटेक्ट नहीं करता है, रीजनल लैंग्वेज को डिटेक्ट नहीं करता है, रेयर बुक से आपने ट्रांसलेट करके कुछ लिखा है तो फिर उसको डिटेक्ट नहीं करता। ये सब उसका लूपहोल है,
एक नेगेटिव पॉइंट्स है। आप ये देख सकते हैं प्रॉब्लम प्लेजरिज्म में क्या रहता है, सॉफ्टवेयर में जब हम पेपर चेक करते हैं तो वो बताता है कि कहाँ से आपने पेपर में यूज किया है सोर्सेस को, कहाँ से आपने कॉपी पेस्ट किया है, ये सोर्स कहाँ है। तो ये सारा चीज क्या करता है, प्लेजरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर बताता है। आप अब ये देखिए, जब आपका पेपर सॉफ्टवेयर में ऐड किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है, तो बताता है कि आप कितनी कॉपी पेस्ट किए हैं, कहाँ कहाँ से आपने कॉपी पेस्ट किया है, ये सारा चीज टर्निटिन सॉफ्टवेयर बता देता है। ये आप देख सकते हैं। तो ऐसे एक ड्यूली चेक्ड फाइल, आपका जो चैप्टर है, आपका पेपर ऐसे दिख रहा है, इतने सारे मार्क कर देता है। ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, मार्क करता है कि इतने कॉपी पेस्ट हुए हैं। तो कॉपी पेस्ट करना गलत नहीं है, बट आपको कोट करना है, डबल कोट दिखा दिया तो फिर सॉफ्टवेयर समझ लेता है कि इसको मुझे एक्सक्लूड करना है ऐसे चीजों को। तो ये तो आपको मैं ये बताना चाहता था कि जब भी आप सॉफ्टवेयर के लिए भेजेंगे जो चेक करने के लिए, उसमें ऐसे होना चाहिए कि आपका पेपर सेव नहीं होना चाहिए उस डेटाबेस में। तो जो भी इसको मैनेज कर रहा है उनको बोलना है कि इसको रिपोजिटरी में ऐड नहीं करना है, उसको नो रिपोजिटरी करना है। इसका मतलब है कि जब आपका पेपर चेक होता है कोई भी सॉफ्टवेयर में, उसको जो चेक कर रहा है उस डेटाबेस में सेव नहीं करवाना है। तो आप सेव करवा दिया तो क्या होता है कि जब भी फ्यूचर में आप फिर से आप चेक करने के लिए जाओगे तो 100% सिमिलैरिटी दिखा देता है, वो गलत होता है। दूसरी चीज के बारे में आपको ध्यान रखना है कि जब पेपर आपका सॉफ्टवेयर से चेक होता रहता है तो आपको कोट्स को एक्सक्लूड करवाना है, कोटेशंस को एक्सक्लूड करना है, क्योंकि बहुत सारे कोटेशन आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप साहित्य के विद्यार्थी हैं, आप लिटरेचर के विद्यार्थी हैं। बहुत सारे कोट्स आप यूज करते हैं, लॉ में बहुत सारे कोट्स यूज होता है, मीडिया में बहुत सारे कोट्स यूज होते हैं, साइकोलॉजी में यूज होता है, बट अदर सब्जेक्ट में उतने नहीं होते हैं। तो पहली बात आपको क्या करना है कि आपका पेपर रिपोजिटरी में सेव नहीं होना है। आपका सेकंड ध्यान रखना है कि जब भी आप एक पेपर को चेक करने के लिए देते हैं तो फिर चेक करने वाले इंसान या ऑफिसर को आपको बोलना है कि कोटेशन को एक्सक्लूड कीजिए, बिब्लियोग्राफी को एक्सक्लूड कीजिए। बिब्लियोग्राफी बोले तो रेफरेंसेस एट द एंड ऑफ द चैप्टर, आपके जो पेपर के जो नीचे जो रेफरेंसेस है उसको एक्सक्लूड करना है। तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है, बट उनको मालूम रहता है, बट फिर भी आप उनको बोल सकते हैं कि इस चीजों को आप एक्सक्लूड करो, नहीं तो फिर बहुत सारे आपका सिमिलैरिटी इंडेक्स बहुत दिखा देगा। तो सो फार हमने प्लेजरिज्म के बारे में बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात किया। अभी पेनाल्टीज क्या होता है, प्लेजरिज्म आपने गलती किया तो पेनाल्टी क्या होता है। पेनाल्टी तो ये होता है कि आपको डिग्री नहीं मिलेगा, सस्पेंड हो सकते हैं, एक्सपल्शन हो सकता है, इंक्वायरी बैठ सकता है, कि बहुत सारी चीज़ों के बारे में है। तो इसके बारे में, पेनाल्टी के बारे में यूजीसी के रेगुलेशन में काफ़ी सारे चीज़ों के बारे में लिखा है कि आपका 10% से 40% हो गया तो फिर क्या होना चाहिए, आपके ऊपर डिसिप्लिन एक्शन क्या होना चाहिए, 40% से 60% हो गया तो क्या करना चाहिए। ये सारी चीज़ों के बारे में रेगुलेशन ने क्लियरली लिखा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबसे कि आप इस रेगुलेशन को ठीक तरह से पढ़ें। तो कैसे अवॉइड करें, मैं तो काफ़ी बोल चुका हूं कि आप प्लेजरिज्म को कैसे अवॉइड करें। पहली बात यह है कि आप बहुत ही एथिकली रहना है, आप एथिक्स को फॉलो करना है, सिंसियरली काम करना है, साइटेशन बहुत प्रॉपरली देना है, एज पर द स्टैंडर्ड देना है आपको। तो उसके लिए आपको साइटेशन गाइड पढ़ना है। जब भी कोई भी जर्नल को आप पेपर लिखते हैं तो उनकी साइटेशन स्टाइल क्या है वो देखना है। आपके थीसिस आप जब यूनिवर्सिटी को सबमिट करते हैं या जब आप काम करना शुरू करते हैं तो फिर उनका साइटेशन स्टाइल क्या है वो देखना है। कभी भी साइटेशन जो ये प्लेजरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर है उसको ये समझना नहीं कि आप वो गलती फाइंड आउट करता है, बल्कि कभी कभी आप वो प्लेजरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर यूज करने से क्या होता है कि आपको एक आइडिया आ जाता है कि सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, मेरे पेपर को कहाँ कहाँ उन्होंने गलत बता दिया। ये आपको एक लर्निंग है ना। आपको बिलीव करना है कि रिव्यू सिस्टम के ऊपर, रिव्यू सिस्टम को बिलीव करना मतलब क्या है कि आपको जो जानकारी ज्यादा है, जो एक्सपर्ट है, उनके पास जाके आपके पेपर को चेक करवाना है। आपको शर्म आता होगा, आपको लगता होगा कि हेस्टेंसी होता होगा कि व्हाई आई शुड शो इट टू सम अदर पर्सन, because if you do not show then the mistakes will stay in that paper only। तो आप कितने लोगों को दिखा देंगे उतनी अच्छी बात है कि आपका पेपर, खुद का पेपर बहुत अच्छा क्वालिटी होता है। जब पब्लिश होने के बाद आपको ही लगता है कि मैं बहुत अच्छी तरह से एक पेपर पब्लिश किया है। तो दैट इज वाई ह्यूमन इंटरवेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज द ग्रेटेस्ट डिटेक्टर। इसका मतलब है कि आपका पेपर में गलती या फाइंड आउट करने के लिए सॉफ्टवेयर तो अपना काम करेगा, उसका भी एक लिमिटेशन है, बट एक पढ़ा लिखा हुआ एक एक्सपर्ट, एक पीयर रिव्यू जो है, जो एक्सपर्ट जो आपके पेपर चेक करेगा उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर चेक नहीं करेगा। तो इसीलिए आप
अपने रिसर्च पेपर को बिना कोई भी हेजिटेशन से आप लोगों से सलाह लीजिए। जो स्टूडेंट्स जिस लेक्चर में अटेंड हुए हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप अपने टीचर का गाइडेंस ले लें। जो टीचर्स रिसर्च कर रहे हैं वो आप अपने गाइड का सही से गाइडेंस ले लें। अगर टीचर्स पेपर लिख रहे हैं तो फिर आपके कोई गाइड नहीं है, तो फिर आप अपने जो अच्छे कलीग है, जो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं प्रोफेशन में, उनको दिखा सकते हैं। तो आप कभी भी याद रखिए, रिसर्च इज अ कलेक्टिव वर्क। कलेक्टिव वर्क बोले तो अपने खुद का वर्क नहीं है, रिसर्च कभी भी उसमें 2-3 लोग जुड़ना चाहिए। तो आप अच्छा ही रिसर्च कीजिए, बट लोगों को दिखाना आपका फर्ज है, आपका कर्तव्य है उसको दिखाना। तो बाकी ये तो मैंने ऑलरेडी आपसे बात किया है कि आपको लिखने का स्टाइल इंप्रूव करना है। आपको समरी कैसे लिखना है, साइटेशन कैसे देना है, कोट कैसे देना है, इसके बारे में आपको सही तरह से प्रैक्टिस करना है। देखिए, आप अच्छा एक राइटर बनना चाहते हैं तो आपको लिखना ही बहुत जरूरत है। अगर आप लिखते ही नहीं तो फिर आप राइटर कैसे बनेंगे, है ना। तो रीड थोरोली एंड साइट, तो कभी भी रीडिंग बहुत आपका स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप अच्छा तरह से साइट कर सकते हो। नोट टेकिंग स्किल को आपको सुधारना है। जब भी आप पढ़ते हैं, लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, ऑनलाइन रिसोर्स को पढ़ते हैं, तो नोट टेकिंग आपका सही होना चाहिए। आप नोट्स को सही तरह से लिखना है, लेना है। तो आप अपने सोर्सेस का एक लिस्ट आउट करें, और आपको पैराफ्रेजिंग के बारे में ज़्यादा ध्यान देना है। खुद के वर्ड्स में कैसे लिखना है इसके बारे में ज़्यादा ध्यान देना है। आप अगर पैराफ्रेज करते हैं तो उसको साइट करना भी बहुत ज़रूरत है। ये सारी चीज़ों के बारे में मैं ऑलरेडी बात की है आपसे। साइटेशन कभी भी प्रॉपरली एंड कंप्लीटली देना है। इसका मतलब है कि साइटेशन जस्ट ऑथर का नाम और टाइटल लिख दिया तो गलत हो सकता है। आपको साइटेशन स्टैंडर्ड को फॉलो करना है। आपको साइटेशन स्टाइल, कोई भी एक साइटेशन स्टाइल है, APA है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन स्टाइल है, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन स्टाइल है, तो कोई भी एक साइटेशन स्टाइल गाइड को आपको जानना बहुत ज़रूरत है। आजकल तो यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस मिलते हैं, आप साइटेशन स्टाइल के बारे में जान सकते हैं। वेबसाइट पर बहुत सारे बुक्स, फ्री बुक्स अवेलेबल है, उसको देख सकते हैं। आर्टिकल्स अवेलेबल है, स्टैंडर्ड्स अवेलेबल है। तो कभी भी आप डाउट में रहे तो फिर एक्सपर्ट का ओपिनियन लेना आपको बहुत ज़रूरत है। सो फॉर हमने प्लेजरिज्म के बारे में काफ़ी बात किए हैं। अभी मैं आपको ब्लैक लिस्ट और व्हाइट लिस्ट क्या होता है इसके बारे में बोलना चाहता हूँ। ब्लैक लिस्ट एक ऐसी वेबसाइट है, ब्लैक लिस्ट बोले तो आप मालूम है ब्लैक लिस्ट कौन होता है। ब्लैक लिस्ट बोले तो जो फेल हुए हैं, जो ऑफेंडर्स है, जो ड्यूज है, उनको हम ब्लैक लिस्ट में डालते हैं। तो वैसे ही जर्नल्स को भी हम ब्लैक लिस्ट में डालते हैं। जो जर्नल्स अच्छा नहीं, रिलायबल नहीं है, भले आपके हिंदी के जर्नल्स इसमें लिस्ट आउट नहीं है, बट आप UGC केयर लिस्ट का देख सकते हैं। तो ये ब्लैक लिस्ट बोले तो ऐसी एक वेबसाइट है, ऐसी एक प्लेटफॉर्म है कि जहां गलत जर्नल, जो अनरिलायबल जर्नल्स है, जो फेक जर्नल्स है, उसका एक लिस्ट किया है, उसको हम बोलते हैं ब्लैक लिस्ट। व्हाइट लिस्ट क्या होता है? व्हाइट लिस्ट ऐसे एक प्लेटफॉर्म होता है कि वहां सही जर्नल्स कौन सा है उसका लिस्ट आउट होता है। जो गलत नहीं है, जो सही जर्नल्स है, उनका लिस्ट आउट होता है। आप UGC के साइट में जा सकते हैं, इसमें आपको सही जर्नल कौन सा है, रिलायबल जर्नल्स कौन सा है, जहां आप पब्लिश कर सकते हैं, उसका एक लिस्ट का यहाँ आपको मिलेगा। तो आप कभी भी लिखते हैं तो फिर आपको बेसिक चेक करना है। ये slideshare.net से मैंने इमेज लिया है। थिंक चेक सबमिट करके एक कॉन्सेप्ट है, उसका मतलब ये है कि आप इस चीज़ों को आंसर करना है। आर दीज माई ओन आइडियाज? आपने जो पेपर में लिखा है वो आपके खुद के आइडिया है? यस, आपके खुद के आइडिया है तो फिर आप गलत नहीं किए। आपके खुद के नहीं है तो फिर आप प्लेगरिज्म कर रहे हैं, है ना। तो इसके बारे में आपको जस्ट आपके खुद के पेपर को आपको इवैल्यूएट करना है। तो ये एक वेबसाइट है, थिंक चेक सबमिट। तो इसका मतलब ये है कि कभी भी आप पेपर लिखेंगे या थीसिस लिखेंगे, उसको सबमिट करने के पहले थिंक करना है कि आपको क्या क्या चीज़ों के बारे में ध्यान रखना था। चेक करना है सही कि आपने ये सारे चीज़ों को ध्यान रखा है क्या नहीं, देन आप सबमिट कर सकते हैं। थिंक चेक सबमिट ये ऐसी प्लेटफॉर्म है जहां आपको कुछ सवाल पूछता है। आपने साइटेशन प्रॉपर दिया है क्या नहीं, आपने पेज नंबर सही दिया है क्या नहीं, आपने ऑथर का नाम सही तरह से लिखा है क्या नहीं, आपने चैप्टर के एंड में आपने साइटेशन लिखा है क्या नहीं। इट इज़ लाइक अ चेकलिस्ट। तो ये आप साइट को देख सकते हैं, आप खुद वेरीफाई कर सकते हैं आपके जो पेपर आपने लिखा है। यहाँ बहुत सारे लिंक्स मैंने दिया है, तो इस टूल्स को आपको एक्सप्लोर करना है, बट डोंट इग्नोर एक्सपर्ट। इतना करने के बाद भी आप ये नहीं समझना है कि एक्सपर्ट को हमको बोलना है, एक्सपर्ट को हमको रेस्पेक्ट नहीं देना है, एक्सपर्ट को हमको पूछना नहीं। वैसे मत कीजिए। आप जब भी कुछ भी लिखते हैं तो फिर बड़े लोगों को, एक्सपर्ट्स को आप दिखाइए। प्लेजरिज्म पेपर में ही नहीं होता है, प्लेजरिज्म बुक में भी नहीं होता है, प्लेजरिज्म इवन फेक कॉन्फ्रेंसेस भी होते हैं। आप देख सकते हैं इसमें, देखिए दोनों वेबसाइट अलग है,
दोनों वेबसाइट अलग है, ये टाइटल ऑफ द कॉन्फ्रेंस अलग है, बट यहाँ देखेंगे आप वर्ड्स दोनों सेम है। देखिए आप वर्ड्स है ना सेम है। तो ये कॉन्फ्रेंस, ऐसे कॉन्फ्रेंस में आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है कि जो लोग खुद एथिकल प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जो अनएथिकल प्रैक्टिस करते हैं, जो फेक डेटा डालते हैं, जो फेक इंफॉर्मेशन डालते हैं, जो रिलायबल नहीं है, वैसे कॉन्फ्रेंस में भी आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है। इसको हम बोलते हैं फेक मीटिंग्स बोलते हैं। ये रिट्रैक्शन वॉच एक डेटाबेस है जहां जो रिजेक्टेड पेपर्स है, रिजेक्टेड बोले तो पब्लिश होने के बाद कुछ कंप्लेंट्स मिलते हैं, पब्लिशर पब्लिश करता है आर्टिकल, लोग उसको पढ़ते वक्त उनको लगता है कि इसमें गलतियां हैं, तो फिर वो लोग कंप्लेंट करते हैं पब्लिशर को। तो पब्लिशर क्या करता है, उसको रिट्रैक्ट करता है। रिट्रैक्शन का मतलब है कि जो पब्लिश किया हुआ पेपर को निकालना। तो ये एक ऐसे प्री डाटाबेस है, आप इसमें जाके चेक कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि कितने पेपर को रिट्रैक्ट किया है अलग अलग जर्नल्स ने। हो सकता है कि आप हिंदी के जर्नल्स को इसमें मिलेगा नहीं आपको, बट इंग्लिश के जर्नल कितने पब्लिशर्स ने रिजेक्ट किया है, पब्लिश होने के बाद उसको निकाला है, उसको अनाउंस किया है कि ये पेपर ठीक नहीं है। तो वो लिस्ट को आप यहाँ देख सकते हैं, आप इस वेबसाइट में आप जाके चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, एज अ रिसर्चर, एज अ टीचर, हमको कोई भी एक साइटेशन मैनुअल मालूम होना चाहिए, स्टाइल गाइड मालूम होना चाहिए। तो आप इसको पढ़ लीजिए। ये तो बुक बहुत ही बढ़िया है, हिंदी के जो शोधार्थी है, विद्यार्थी, इसको पढ़ना बहुत जरूरत है। MLA हैंडबुक फॉर राइटर्स ऑफ रिसर्च पेपर, ये जस्ट 200 रुपये या 300 रुपये में अमेजॉन में मिलता है आपको, आप पढ़ सकते हैं। ये APA स्टाइल है, 7th एडिशन आया है, अभी ये 6th एडिशन है, 7th एडिशन नया एडिशन आया है, आप पढ़ सकते हैं। 1700 रुपये में मिलता है आपको ऑनलाइन में। तो ये काफ़ी लर्निंग है इसमें आपको पता चलेगा कि आर्टिकल कैसे लिखना है, पेपर कैसे लिखना है, अब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखना है, साइटेशन कैसे देना है, और आर्टिकल्स जो आप पढ़ते हैं उसको इवैल्यूएट कैसे करना है। ये सारे चीज़, बहुत सारी चीज़ों के बारे में ये स्टाइल गाइड बात करता है, तो पर आपको पढ़ना जरूरी है। तो ये जैसे मैंने बताया कि रेफरेंस स्टाइल जो है अलग अलग इंस्टीट्यूट, अलग अलग पब्लिशर से डिफरेंट होता है। तो फिर इसलिए आपको पहले ही जानना जरूरी है कि साइटेशन स्टाइल कौन सा फॉलो करते हैं। आजकल MS वर्ड यूज़ करके भी आप साइटेशन के स्टाइल के हिसाब से आप लिख सकते हैं। जोटेरो मेंडले एक ऐसी टूल है जो जहाँ से आप साइटेशन का सही फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं, जिस फॉर्मेट में चाहिए, जिस स्टैंडर्ड में चाहिए वो लिख सकते हैं। मैं जितिन जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ऐसे लेक्चर रखे कि आपके सभी को जोटेरो के ऊपर, मेंडले के ऊपर ऐसे लेक्चर रखे कि लोगों को ये समझ में आए कि सॉफ्टवेयर को यूज करके कैसे साइटेशन को, ऑटोमेटेड साइटेशन क्रिएट कर सके, है ना। आपके फ्यूचर में जब भी आप ऑर्गेनाइज करेंगे तो आप वैसे कर सकते हैं। तो अभी मैं अभी एंड पर आया, अभी मैं क्लोज करने वाला हूँ मेरा प्रेजेंटेशन। मैं क्लोज करने के पहले, मैं इसको खत्म करने के पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि ये पॉली का मैं कोटेशन बहुत लाइक करता हूँ। आई डोंट माइंड यू थिंक स्लोली बट आई माइंड यू पब्लिशिंग फास्टर देन थिंकिंग। तो आप कभी भी आप स्लो थिंकिंग करेंगे तो ठीक है, बट आप इतना फास्ट पब्लिश करेंगे कि आप थिंक ही नहीं करेंगे, इन द सेंस आप थिंक करने के पहले आप पब्लिश कर रहे हो, तो पब्लिकेशन इतना फास्ट नहीं चलता है। आप बहुत ही इंटेलिजेंट हो सकते हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप स्टैंडर्ड के हिसाब से आप लिखेंगे नहीं, आप अच्छा लिखेंगे नहीं, आप स्टैंडर्ड को नकारना है, आप कॉपी पेस्ट में ज़्यादा बिलीव रखना है। तो ऐसे किया तो फिर क्या होता है कि आप बहुत सारे 10 या 20 पेपर आप एक महीने में पब्लिश कर सकते हैं, बट वो आपको नाम नहीं लाएगा, आपके इंस्टीट्यूट का नाम खराब हो जाता है, आपका नाम इसमें जुड़ा है। तो इसलिए आपको जब भी आप लिखना चाहते हो, थिंक अ लॉट, ओके, वर्क ऑन दैट, visit libraries, then only you start writing, and after writing it you show it to your experts and take their opinion, and then only revise and then submit for publication. तो बहुत सारे मैं लिंक्स यहाँ शेयर किया है आपको। कभी भी आपको प्लेजरिज्म के बारे में जानकारी चाहिए तो इस लिंक को आप, इस लिंक के जरिए आप जान सकते हैं कि और ज़्यादा जान सकते हैं। ये प्रेजेंटेशन तो जस्ट आपको एक इंट्रोडक्टरी था, एक इंट्रोडक्शन देना था कि प्लेजरिज्म होता क्या है। और भी मैं इसमें बहुत सारे मैं डाला है, इसमें लिंक्स डाला है, आप पढ़ सकते हैं। आपके कोई भी सवाल रहे तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच जितिन जी वंस अगेन, एंड आई थैंक all organizing team members for giving me this opportunity. Thank you so much. धन्यवाद सर। अब समय है प्रश्नावली के। अगर निर्धारित विषय पर कोई प्रश्न या सवाल पूछना चाहते हैं तो कृपा करके इस समय को अपनाएं। So in case if you have any doubt you can contact me and I am sharing the PPT with you all. तो जितिन जी को मैं शेयर करूंगा, तो then he will share with you all. सुशील जी, सुहील, आप सुहील है,
जितिन है, मैं स्क्रीन पर जो देख रहा हूँ आपको, इसमें सुहील दिखा रहा है, सुजील या सुजील। सर लगता है आपका वक्तव्य उतना प्रभावशाली था, इसलिए किसी को पूछने के लिए कोई सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद सर। साहित्यिक चोरी, कृति चोरी यानी प्लाजियरिज्म आज के जमाने में कितने मायने रखते हैं, इस विषय पर सबका ध्यान आकर्षित करने तथा सफलता से अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने के लिए अपने कीमती वक्त से समय निकालकर आज के इस वेबिनार को सफल बनाने के लिए डॉक्टर संतोष जी को KR कॉलेज एवं हिंदी विभाग की ओर बेहद धन्यवाद। अब समय है फीडबैक फिल करने का। आपको एक लिंक दिया जाएगा, उसमें नाम और नंबर आदि देकर आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। फीड देने वालों को ही हम सर्टिफिकेट इश्यू कर देंगे। अब समय है धन्यवाद प्रस्ताव का। उक्त कार्य के लिए कॉलेज के बीकॉम विभागाध्यक्ष श्री गिरीशन EM को सादर आमंत्रित करती हैं। Good afternoon all. On behalf of KR Srinarayana College, I extend my gratitude to our honorable chief guest, Dr. Santosh Sir, University Librarian, Central University, Haryana, to take out time from his busy schedule and grace the event. Thank you, sir. Thank you for valuable information. Thank you, sir, for your inspiring and encouraging words on this special day. A special thanks to Anil sir, Principal KR Srinarayana College, Valancheri, for providing immense support to make the webinar series successful. I express my sincere thanks to Jitin sir, Head of the Department Hindi, and the organizing team for working hard for past few days to make the Dishna series successful. I express my thanks all participants. Thank you everyone once again for making a great success. Thank you. आज के इस कार्यक्रम में भाग लेकर इसे सफल बनाने के लिए सबको हमारा धन्यवाद।